Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बैराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ गए हैं टू डिस्कस द पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम लास्ट नाइट. ब्रो, Yes, sir. So India ultimately comprehensively defeated Pakistan by 6 wickets and 7 deliveries to spare. ज़्यादा हो सकती थी, but ज़्यादा होनी चाहिए you know थी. they just ensured that they win the game as opposed to getting a big net run rate boost. क्योंकि इंडिया को पता है कि वो on wins ही आगे qualify कर जाएंगे. Yeah. So that was probably the right thing to do, I suppose. Either way, पाकिस्तान को probably thank you कहना चाहिए कि जल्दी नहीं खत्म किया. थोड़ा सा इतना मैसिव रन रेट डेंट नहीं पड़ा उन्हें. 7 deliveries to spare is not all too bad, but yeah, just to kind of take all of this in for a second, right? India in their last 21 T20Is have only lost 2 games. ठीक है, this was probably the poorest I've seen them play in a long time. For the first 10 overs, sure. उसके बाद तो I think they were fine. हाँ. नहीं मतलब कि you know they gave you chances काफी. First 10 overs में उसके बाद क्या ही किया? उसके बाद तो ठीक थे वो. हाँ मगर फील्ड के अंदर तो बुरे ही थे throughout. हाँ, वो तो uncharacteristic. हाँ. Yeah, and plus, you know, I'm not saying कि you know Pakistan would have won the game had they bowled first, but जब टॉस पे ही स्काई ने जीत कर when he opted to chase, I was like, there's half the game gone because in my opinion, it is incredibly hard. In fact, that's not opinion, that's probably fact. It is an incredibly hard task to outbat this Indian team in particular, and even if you bat well, they can play their C game. Chasing and they can probably get to like anything under 180 easily. ठीक है, मसला वही था कि you need to had or you need to have had at least a minimum of 180 runs to just challenge India. Challenge, not saying defeat, just challenge. और मतलब आप जब टॉस ही हार गए तो फिर वो चला गया आपसे, क्योंकि आपसे तो नहीं होने थे 180 रन. 180 हो सकते थे, होने चाहिए थे. हो सकते थे. 180 क्या 190 होने चाहिए थे. 190 प्लस तो होना ही चाहिए. I think when you have wickets in hand going into the last 10 overs और आपने सिर्फ 100 रन बनाने 190 तक पहुंचने के लिए, तो आप तो आराम से कर सकते हैं. बिल्कुल, मगर वो wickets in hand उनको शायद नहीं पता था कि थी उनके पास, right? They weren't batting in a way that we have an extra batter or anything, or still guys out there who can smash it. It was just like, you know, पहले ही I genuinely feel that the only way to get this Indian team or put them under any sort of pressure or defeat them potentially is to bowl first and get like 3 wickets in the power play. Then you can put pressure on them. वरना आपका कोई chance ही नहीं. At least all of these teams in the Asia Cup have no chance. Even last night, I think अगर पावर प्ले में 2-3 विकेटें आ जाती ना तो मुश्किल हो जाता इंडिया. हो सकता था. But then again वो पावर प्ले में गेम खत्म कर दी थी. पड़खचियां उड़ाई हैं, पड़खचर्स खत्म मुका दी थी यार. Yes, इंडिया, अच्छा, it's funny. Pakistan had their best ever power play in history versus India in a T20I. They scored 55 for 1. And India's power play, batting power play, was 14 runs better and also 1 wicket better. They were 69 for 0 in their power play. उसके बाद क्या 103 रन रह गए 14 ओवरों में with 10 wickets in hand. It was game set match, man. Power play में ही मुका दिया उन्होंने. मुका दिया था. अभिषेक शर्मा and शुभमन गिल. Wow. अच्छा, अभिषेक शर्मा को तो हमें पता ही है ना कि वो क्या करता है, लेकिन शुभमन गिल was exceptional last night. I mean, he was at one point batting faster than Abhishek Sharma. अगर तुम्हें याद हो पावर प्ले में. और उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट पे दिखाया था his range of shots. हर तरफ. All over the ground. He had shots all over the park, impeccable range, crazy range really. Shubman Gill, यार, हम यही कह रहे थे कि personally I would have Jaiswal or Iyer ahead of him in the team, but it's not like he's a step down. But then again, these are good problems to have. In these conditions though. यार कंडीशंस को भी निकाल दो. मैं कहता हूँ इन कंडीशंस को जरा रखो मद्देनजर, तो फिर गिल नहीं उस तरह तो फिर Jaiswal is also great, I would say. भी है. Point is कि Shubman Gill ends up with what 47 of 28, right? He plays low risk attacking cricket. No. Safe attacking cricket. Safe, yeah. He was basically Pathum Nissanka on drugs. यही कह सकते हैं ना, क्योंकि On Pathum steroids, on steroids. यही करता है Nissanka भी, but Shubman Gill was way better than that. And this is probably what a modern day anchor now looks like. They're not weighing back the team. Can you call them an anchor? You cannot. अगर इस रेट पे खेल रहे हो. With that strike rate, you cannot. But if they're not out and out slogging or playing aerial shots, फिर आप ये point make कर सकते हो कि they've gotten so good at piercing gaps and just playing conventional cricket कि वो उसके बावजूद they can maintain such high strike rates. 47 of 28 is ridiculous. It's really good. So I would give a lot of credit to Shubman Gill. अभी मैं अली भाई के साथ slog sweepers वाला शो करा रहा हूँ. वो कह रहे थे कि मुझे अभिषेक शर्मा के अंदर कोहली की झलक नजर आई. मुझे अभिषेक में नहीं नजर आई, मुझे गिल में नजर आई. अभिषेक में तो मुझे I don't even know. It's a combination of Yuvraj Singh and
any good opener they had, Virendra Sehwag, I don't know. And like Nitro, ठीक है, crazy. Like, थोड़ा सा वो भी डालो उसके अंदर. They alone would not be able to do what he does. He is like for India 1 of 1. But Shubman Gill में वाकई मुझे कोहली की झलक नजर आई in the sense कि he wasn't playing out and out attacking cricket. It was low risk attacking cricket and the results are phenomenal. 47 of 28. और वही मैं कह रहा हूँ कि in the power play when India are 69 for none and they've killed off the game. They've essentially murdered Pakistan already. ठीक है, वहां पे तो गिल भी बहुत तेज खेला. बहुत ज्यादा तेज खेला है. और किस अंदाज में तेज खेला. He deserves heaps of credit, but boy, Abhishek Sharma Sadi, southpaw, prodigious lefty, an absolute prodigy. अच्छा, उसकी बेस्ट बात पता क्या लगी है? Sure, everyone knows he goes big. Yes. लेकिन the most important part कि वो जिस तरह बिग जाता है ना, that's crazy. वो एनालाइज करते हैं कि फील्ड किधर है और जहां पे पीछे लिया होगा बंदा उधर कभी भी नहीं मारता. कभी भी नहीं. वो सिर्फ जो इनर रिंग में बंदा होता है उसके ऊपर से टापता है. और मैं कहता हूं अगर रिस्क ले भी लो तो उसके ऊपर से टापी जाएगी. वही वाली बात है ना कि I always used to make this point कि those are high risk low risk shots, right? You are going aerial but it's still low risk because you're backing yourself to clear the inner ring fielder. Risk सिर्फ इतना कि इतनी गंदी टाइम हो कि कैच आउट हो जाओ, जो कि अभिषेक शर्मा तो शायद कभी हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से. इतना भी नहीं. हाँ, but the way he bats he almost always clears the inner ring fielder. Almost always does, लेकिन एज तो हो ही सकता है. अच्छा, ये तो हम पावर प्ले की बात कर रहे हैं ना, जिसके अंदर सिर्फ 2 लोग बाहर हैं. नहीं, उसके बाद भी आउटसाइड ऑफ पावर प्ले मैं कह रहा था कि 5 फील्डर हैं बाहर. हाँ. लेकिन फिर भी वो इनर रिंग वाले फील्डर के ऊपर से टाप रहा है. Absolutely, we saw this time and again that the ball was aerial. We were like, oh, is there a fielder there? But there wasn't. Every single time he went berserk post power play as well. It was in those areas जहाँ पे inner ring fielders मौजूद हैं, क्योंकि वो बैक करता है कि मैं इनको टाप लूंगा. I'm going to get the ball ahead of them or I'm going to kind of cross that inner ring field, and that's how I was just won't get out. यार वो तो कल slow था by the way. He was 9 of 6. He was 9 of 6. हम तो पथे के टीके कह रहे थे कि यार अभिषेक तुझे क्या हो गया. उसके बाद एक कैच भी ड्रॉप हुआ उसका 40 पे. He was on 40. उससे पहले भी एक था नवाज को बहुत मुश्किल चांस मिला था. हमने वो कैच ड्रॉप कंसीडर नहीं किया कि that was मतलब 1 out of 100 catches उस तरह की शायद पकड़े गए. हाँ, but the flip side to that argument is that you have to take all of those half or quarter chances as well versus India. It wasn't even a quarter chance. It wasn't, you're right. I don't think वहाँ पे कोई पहुंच रहा था. But on 40 he was dropped by Saibzada Farhan in the deep and that should have been taken. जो छक्का हो गया था. Abhishek Sharma, even if he lasts 3-4 overs, the damage is done. He needs 10 to 15 balls. मैंने तो बोला था लाइव में कि 6 बॉलों के अंदर इसे आउट करो तो 2 छक्के भी खा लो बेशक, लेकिन 6 बॉलों के अंदर आउट करो. पहले 2 ओवरों में आउट ना किया अपने अभिषेक शर्मा को, आपको भारी पड़ जाएगा. If he lasts for 3-4 overs, forget the power play. He just needs to last for 3-4 overs and the damage is done. कई दफा मैं कह चुका हूँ, he is in a mold of his own or a league of his own. He's operating on a different planet. करीब कौन आ रहे हैं? हमेशा हम कहते हैं Travis Head, Phil Salt, Josh Butler, Finn Allen. इसमें Finn Allen थोड़ा दूर ही है लेकिन करीब ही है. Finn Allen और Seifert को उससे साला हल्की लीग में डालो. मोल्ड वही है लेकिन ऑब्वियसली लीग थोड़ा सा एक डिवीजन बिलो. उसका तो जेक फ्रेजर मैगर्क भी है in the same mold. बट लीग वो तो थर्ड डिवीजन वो शायद फिन एलन और साइफर्ट वाली लीग से भी नीचे है. बट आई फील लाइक अभिषेक शर्मा की ही लीग में in that same bracket you've got Travis Head, Phil Salt and Josh Butler. इनमें से young, relatively young तो सिर्फ Phil Salt है. अभिषेक शर्मा is 25, Sadi. 25. The future is his. His time is now and forever. And Gill is 26, right? Yeah. और ऊपर से यार मैं बार-बार ये कहता हूँ. और जायसवाल इन दोनों से भी छोटा है. स्क्वाड में नहीं है. I always talk about inflection points. We talk about the 400 chase South Africa वाला. फौरन आपको 400 प्लस स्कोर्स ही नजर आए, कुछ देर बाद नजर आना शुरू हुए. 4-5 साल बाद. It takes time to get there. उसके बाद मोहम्मद आसिफ pioneered the wobble seam delivery. Jimmy Anderson then mastered it later, and then 2018 is when the pace playing pandemic starts, where everyone starts bowling the wobble seam delivery and the averages drop in Test cricket. ठीक है. Similarly, what we saw from the Sunrisers Hyderabad in IPL 2024, which Saad and I covered extensively. Abhishek Sharma and Travis Head. Abhishek Sharma and Travis Head. And Heinrich Klaasen. Oh my God. Shit. Travis Sheikh plus Klaasen. That Sunrisers Hyderabad campaign, even though they lost the final, that was an inflection point in T20 cricket, and this game has never been the same ever since. अभी तो आपको फिर थोड़ा नजर आ रहा है. अभी देखना ना, even though currently it's a batter sport, this will become even more skewed towards batters because we've had that moment, and now more and more teams will catch on to it later and be good enough. Just wait for a couple of years. Yeah. देखने को मिल जाएगा आपको कि हो क्या रहा है.
वाकई। और फिर इन कंपैरिजन पाकिस्तान कितनी पीछे। वही तो मैं कह रहा हूँ यार, बार बार मैं ये कहता हूँ, Jared wrote a piece on it as well, that India are playing space age cricket. They're playing T20 cricket from the future, and all of these other Asian sides, at least in this Asia Cup, are trying to catch up to modern day or present day T20 cricket. देन अगेन फिर हम कहते हैं कि 2-3 टीमें हैं जो इन्हें चैलेंज कर सकती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड टू सम एक्सटेंट न्यूजीलैंड। I don't think New Zealand can challenge सम them. एक्सटेंट यार मैट हेनरी शुरू में वो तो खैर सैंडर पड़ जाता होता I suppose for any team, if you are bowling first and you get 3 to 4 wickets in the power play, then you've got India under pressure. I'm not too sure on New Zealand on that part because Yeah. they play the same mold of cricket, similar mold of cricket, not at that level क्योंकि Finn Allen, Tim Seifert के करते वही हैं। वो अभी स्टार्ट हुए हैं। हाँ, They're also late to the party, but they've effectively kind of made that switch. तो वो अगर कैरी ऑन कर जाए तो थियोरेटिकली तो they can beat India. But I'll tell you what, तुमने गिनाई ना मुझे टीमें, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उन तीनों में तुम्हारे साथ हो, न्यूजीलैंड में मैं हल्का सा इफ्यू मगर चलो डाल दो, चलो मतलब they can, आप सोच सकते हो कि हाँ I think it's India, Australia, England, South Africa, then there's a gap, then New Zealand, then there's a gap, and then there's everyone else. थोड़ा गैप थोड़ा ज्यादा है। वो गैप ज्यादा हो जाता है, डे लाइट आ जाती है बीच में। What I'm trying to say that is that even those teams, न्यूजीलैंड को डाल देता हूं मैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, even those Conditions teams dependent. conditions dependent ये है। हम हमेशा बात करते हैं। certain conditions में इंडिया को मार सकती है। India is the only T20I team in the world who can play this sort of brand of cricket across all conditions really. Do you think कि इन पिचेस पे दुबई, शारजा, अबू धाबी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इतनी ही सक्सेसफुल होंगी? No, they would not have the same sort of success as India. फ्लैट डेक्स पे वो वहां पे चैलेंज कर सकती है, वहां पे हरा भी सकती है। तो वही है ना, इंडिया कैन प्ले इन ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशंस इस बैटिंग यूनिट के साथ। The other teams can't. ऊपर से फिर तुम्हें याद ही होगा T20 वर्ल्ड कप फाइनल, हाँ। दैट्स प्रूफ दैट इट्स इनक्रेडिबली हार्ड टू बीट दिस इंडियन टीम। और वो भी यार चेस ना कर पाए, उनको करना चाहिए था। वो तो चेस करना चाहिए था। वहां पे exactly what happened over there by the way. Similar story, right? Yeah. You bowl first to India, you get quick wickets, you get them under pressure, and then you hope and pray that you will be able to chase versus 12 overs of Varun, Kuldeep and Bumrah, जो by the way कल पाकिस्तान ठीक खेल गई। कल ठीक नहीं खेल रही। ठीक तो नहीं खेली खैर। नहीं, बुमराह और कुलदीप को तो बहुत अच्छा खेल उनको तो पाकिस्तान स्कोर्ड 1 for 76 ऑफ बुमराह एंड कुलदीप। 45 रन्स या जसप्रीत बुमराह को मारे, वाकई। उसके बावजूद he only scored 171. भाई इन सब चीजों पे तो मैं आता हूं, there is lots to talk about obviously, ठीक है। My God. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वरुण चक्रवर्ती wasn't bowling well. He was none for 23 in 3 overs, then he bowls a death over. He ended up as India's most economical bowler with figures of none for 25. Pakistan scored 2 runs off that death over by Varun and about 4 to 5 deliveries were dead batted by Mohammad Nawaz. उसके बाद कुलदीप आता है, सलमान अली आगा smashes a 6 first ball and then he leaves 2 deliveries of Kuldeep. That's 6 deliveries. That's an over. आपने 171 किया 19 ओवरों में। डेथ ओवर्स में आपने 6 बॉलें ट्राई नहीं किया रन लेने का। You're the extra or you're playing an extra batter. You have a deeper batting lineup. यहाँ पे एक तो you fucked up the batting order. Yes. उस पे आते हैं बाद में। आते हैं। But Mohammad Haris and Shaheen Shah Afridi did not even get to bat. मोहम्मद हारिस को पता है एक्सेलरेट करते हैं क्रेजी की तरीके से, वो लग गई तो लग गई वरना आउट हो जाएगा। Shaheen Shah Afridi had scored 62 runs in 30 deliveries and he was unbeaten in the last 2 games. He averaged infinity 62 of 30 in 2 games combined, a strike rate north of 200. He didn't even get to bat. आपके पास ये लोग पड़े हुए थे and it was you were playing like बस बैटिंग खत्म हो गई हमारी। तुम थोड़ा आगे निकल गए हो, शाहीन और हारिस को काउंट करे हो, अभी तो फहीम की बैटिंग नहीं आ रही थी। हाँ तब तो वो भी नहीं था। वो भी पड़ा हुआ था। हाँ। जब मोहम्मद नवाज ने डेड बैट किए हैं 4 डॉट्स अगेंस्ट वरुण, वाकई, और फिर 2 लीज हुई हैं, उस वक्त राणा फहूम भी पीछे बचा हुआ था। What an absolute travesty. This is a pity. तीन डेथ ओवर्स में स्पेशलिस्ट आप कह लो ना, चलो हारिस को ना कहो लेकिन मार तो सकता है ना यार, क्या ही कह सकते हैं। एक तरफ वो अभिषेक शर्मा, despite having a slow start, he got to his 15 24 deliveries. He ends up with 74 of 39, is it? Yes. Or is it like 78 of 39? पता नहीं। I think it's 74 of 39. Either way, he plays at a slower strike rate than he's used to. वो तो उसके लिए स्लो ना होके, एक तरफ ये और दूसरी तरफ क्या हुआ है, हुसैन तलत, who by the way never should have played, हसन नवाज should have played. My God, जब वो डिसीजन, जस्ट बाय द वे उस पे आने से पहले ना, हुसैन, उनके ब्रेकडाउन मुझे पता है, तुमने बताना है। हुसैन तलत रिप्लेस बाय हसन नवाज, ये सुबह से क्यों खबरें सबको पता थी? मुझे पहले कोई ये बात पता है? उल्टा बोल गए हो हम। क्या? हसन नवाज रिप्लेस बाय हुसैन तलत, एक ही बात है यार। इस वक्त निकल जाएंगे इधर उधर अल्फाज मेरे। पूरी जर्नल्स को कैसे पता थी कि ये चेंजेस हो रही हैं यार? मुझे कोई ये बताए। मुझे भी नहीं समझ आती। अली भाई ने मुझे पिछली रात बता दिया था। कैसे पता है कि ये चेंजेस हो रही हैं यार? दैट्स स्टूपिडिटी, दैट्स अनप्रोफेशनलिज्म। उसके बाद फिर
सेंस भी नहीं मेक करी थी ये चीज. Hussein Talat has barely played. Hassan Nawaz is young. He has been out of form. He's been Obviously, out he's of form, failed. yes. But he's the sort of player who can turn the game on its head, who can take the game away from the opposition and can completely change the complexion of a game within an over. अच्छा मुझे That's बताओ. what Hassan Nawaz is. हाँ मुझे बताओ हुसैन तलत को ये लेके आए थे टू टैकल स्पिन. What does Hassan Nawaz do? Just by the way, Exactly. उसका USP क्या है? He takes down spin, doesn't he? Yeah, is he not a spin basher who can also take down pace after the ball is not new anymore? He's a spin basher. Hussain Talat is a spin negotiator. Yeah, वो थोड़ी रिवर्स स्वीप वगैरह मार लेता होता, मगर कल उससे भी क्या ही देखे. I'm not going to blame Talat too much. ज्यादा खेला नहीं है, सीधा इंडिया वाले मैच में आ गया. I think सबसे पहले तो हम भी ये बात करते थे कि उसकी सिलेक्शन ही डज नॉट मेक सेंस इन T20 आईज. तो मैं प्लेयर पे क्या ब्लेम डालूं? एग्जैक्टली उसको मैं उतना ब्लेम नहीं डालूंगा. मैं मैनेजमेंट पे ब्लेम डालूंगा कि आपने हसन नवाज में इतना जल्दी फेथ लूज कर दिया. दिस वाज द गाय यू हैड टू बिल्ड योर टीम अराउंड. राइट, यू हैड टू जस्ट कंटिन्यू टू प्ले इन द मिडिल ऑर्डर. वैसे ही आपके पास मिडिल ऑर्डर में बैटर्स नहीं है, स्पिन बैशर्स का मसला रहता है. सलमान अली आगा एंड हुसैन तलत इन योर मिडिल ऑर्डर, ये पता नहीं. आई डोंट नो व्हाट दोस प्लान्स आर. दिस वही जो तुमने लास्ट टाइम बोला था ना, जो तुम्हें वर्ड नहीं पसंद, ये मंजन है ब्रो. ये मंजन भी या पता नहीं. आज दानियाल ने भी लिखा हुआ कि देयर इज अ गैप इन बिटवीन और देयर इज अ गैप बिटवीन व्हाट पाकिस्तान आर सेइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है, तो वो तो हम Hypocrisy. दैट वाजंट इवन एज अपैरेंट इन दिस गेम एज द प्रीवियस 3 गेम्स इन दिस एशिया कप. तो वो तो आप पिछले पॉडकास्ट सुनो. मिडिल ऑर्डर में तो थी. मिडिल ऑर्डर में थी. अच्छा, अब मैं आ जाऊं वहां पे. आई डोंट माइंड. सब लोग कह रहे हैं कि तलत को आना नहीं चाहिए था. अगर खेल रहा था तो भेज दिया आपने. वो 10 ऑफ 11 कर गया, माफ कर दिया मैंने तलत को. उस बेचारे पे मैं क्या ही बोलूं. इफ यू थिंक दैट योर बेस्ट ऑप्शन वाज हुसैन तलत अहेड ऑफ हुसैन नवाज, तो वो आपकी गलती है एज अ मैनेजमेंट, एज टीम मैनेजमेंट. हुसैन नहीं, हसन नवाज नहीं बोला मैंने. इफ यू थिंक हुसैन तलत इज अ बेटर ऑप्शन देन हसन नवाज, देन दैट्स ऑन यू, टीम मैनेजमेंट. फॉर स्टार्टर्स ही गेट्स 10 for 11, फाइन. उसके बाद यू सी मोहम्मद नवाज कम इन, राइट. He scores 21 of 19. पहले भी स्लो था, बीच में थोड़ी सी लगी हैं, और उसके बाद यार then he dead bats 4 or 5 deliveries in that वरुण चक्रवर्ती over. बस वहां पे मेरा हेड लॉस हो गया था. मैंने कहा यार ये तो डेथ ओवर्स हैं. You've got these players in the kitty. तुमने कहा राना फहूम भी अवेलेबल था. फहूम भी अवेलेबल. Mo Haris and Shaheen Shafridi, and Shaheen Shafridi and Mo Haris don't even get to bat at all. What a pity. It is an absolute pity. मैं तो कहता हूँ हारिस रऊफ को भी डाल दो इसके अंदर. हाँ यार, हम लोग जब लाइव कर रहे थे हम कहते पता है आज सलमान अली आगा को बैटिंग ही नहीं करनी चाहिए. गिवन हिज रीसेंट स्ट्राइक रेट वाज, यू शुड जस्ट सैक्रिफाइस योर पोजीशन ऑल टुगेदर. बेराम कह रहा था कि उसको शाहीन के नीचे आना चाहिए अगर बारी आई. मैं कह रहा था हारिस रऊफ के नीचे आना चाहिए अगर बारी आई. एग्जैक्टली, जाकर लाइव देख लो. हम लोग ये बातें करें एंड देन ही वॉक्स आउट. ठीक है, नवाज चलो गंदा खेला, डेड बैट की 21 of 19 व्हाटएवर. उससे उस लेवल की वो उम्मीद भी नहीं होती, हमेशा हिट और मिस है. सही है, गंदा खेला, हिट और मिस है. हाँ, मगर हिट मिसिंग था. हाँ, डेड बैट और मिस तो नहीं, हिट मिसिंग था. अगर वो क्यों नहीं ट्राई क्यों नहीं किया आपने यार? 16th ओवर है, इट्स अ डेथ ओवर. विकेटें पीछे पड़ी हैं, तुम घुमा दो यार. नहीं क्या कर तुम मारते हुए आउट हो. जो तुम क्या विकेट बचा के क्या घर लेके जानी थी, क्या करना था? guys... उसके बाद रन आउट क्या हुआ है वो? ओहो, कैजुअल प्रो मैक्स. अच्छा ठीक है, वो तो बात तेरी बिल्कुल ठीक है कि इफ यूर प्लेइंग द एक्स्ट्रा बैटर, यूज द एक्स्ट्रा बैटर. you're in the death overs for crying out loud. ये कोई 12वां ओवर नहीं है, ये 16वां ओवर है यार. क्या कर रहे हो आप? And anyway, he scores 21 of 19. So now we have Talat 10 of 11, Nawaz 21 of 19. Salman Ali Agha, who in my opinion shouldn't have even batted, considering his strike rate was pathetic in this Asia Cup. You go pathetic. और उससे पहले भी गंदी जा रही थी. That New Zealand series and Bangladesh home series is a long way back. Long way. पुरानी बात हो गई है वो. Bro, उसके बाद आपने कितने खेल लिए मैचेस? अभी मैंने बोला कि I am losing patience with respect to Salman Ali Agha's strike rate. पिछले पॉडकास्ट में बोला मैंने, जो हमारा था. And he's got 2 more series for me. South Africa T20 series and then the Tri series. If he cannot up his game with the bat in terms of strike rate, then I'm sorry, Shadab Khan replaces him for me. मैं माइंड में मैथमेटिक्स कर रहा था तो राउंड अबाउट 14 से 15 मैचेस हो गए बांग्लादेश होम सीरीज को. अच्छे खासे हो गए हैं यार. 3 बांग्लादेश अवे, 3 वेस्ट इंडीज अवे, 5 ट्राई सीरीज, 11 एंड 3 ये 4 15 मैचेस. 15 games. You've been shit for 15 games. मैं अभी भी कह रहा हूं, आपको टाइम देता हूं मैं. I'll give you the South Africa T20 series. I'll give you the Tri series that's going to be played in Pakistan between Pakistan, Sri Lanka and Afghanistan. But if you fail in terms of strike rate, और कप्तानी में भी गलतियां कर रहे हो, वहां पे भी आएंगे हम. But Shadab Khan is a better T20 bat than you. He has a better skill set as far as bowling is concerned because he can turn the ball in both directions. Execution is a different story. He is a better fielder and a better captain than you. मेरा मसला पता है क्या शदाब के साथ? You know I love Shadab. लेकिन मेरा मसला ये है कि जब तक वो अपनी बॉलिंग ठीक नहीं करेगा. But Sadi, if he's replacing Salman Ali Agha, he's not bowling that many overs anyway. But then again, मुझे अब देखना पड़ेगा आफ्टर सर्जरी वो किस तरह की फॉर्म में है. उसका
BBL में कुछ करके दिखाए तो देख लेते हैं क्या देखते करते हैं। I mean, obviously, हैं। बॉलिंग चलो ठीक है, वो वाली शायद ना रिपीट कर सके जो पहले करता था yeah. बैक 4 years ago। मगर चलो कुछ सर्विसेबल हो जाए। कुछ सर्विसेबल हो जाए और बैटिंग ठीक कर लेता। अगर वो बैटिंग ठीक कर लेता तो I'd bring him ahead of Honestly, Salman Ali। he should honestly at this point even focus on his batting, क्योंकि सलमान अली यादव को रिप्लेस करे तो बैटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवर तो अभी- एक दो ही मिलेंगे ज्यादा लेकिन ज्यादा। अभी देखना पड़ेगा उसे, सर्जरी के बाद आ रहा है, भाई- रिहैब कैसा हुआ है, बहुत चीजें फैक्टर इन करती हैं, स्पेशली फॉर रिस्ट स्पिनर। I agree, or he only comes in if he's fit and firing. I agree, but just on or in terms of the cricketers' profiles, I feel like he gets in. Right? I do agree with you on that। हाँ, क्योंकि प्लेयर प्रोफाइल में तो वो बॉलर बेहतर है ना, ही कैन टर्न द बॉल इन बोथ डायरेक्शंस। उस तरह तो आप देखो तो वो बैटिंग भी तेज करता है ज्यादा सलमान अली आगा से, और फील्डिंग और कप्तानी तो बहुत बेहतर कर लेता होगा। बहुत बेहतर नहीं, खैर फील्डर सलमान भी अच्छा है। हाँ, लेकिन फील्डर शादाब is बेहतरीन one of the better ones। I think Shadab Khan is probably one of the best fielders Pakistan has ever had. Maybe the best even. Yeah. सोचा जा सकता है। Yeah, वो he's in that conversation Yeah. definitely. और captaincy we've seen for Islamabad United, he's been spectacular. खैर ये जरा digress कर गया हूँ मैं कहना ये चाह रहा था कि cousin Sal goes unbeaten on 17 of 13, leaves 2 Kuldeep Yadav deliveries, and the combination of these three guys, Sadi Hussain Talat, Mohammad Nawaz and Salman Ali Agha, these three guys combined for 48 of 43 deliveries. That is piss poor. This is not modern day cricket. आपने सारा advantage lose कर दिया। And सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार करता हूँ, even if you blink versus India, they will destroy you. This is a pretty big goddamn blink. ब्लिंक नहीं है ब्रो, आंखें बंद कर। ये तो blink 182 है। थोड़ा सा नैप टाइम ले लिया था बीच में। भाई लंबा ही नैप टाइम ले लिया था। 48 और 43। ये तो पावर नैप भी नहीं था। अगली टीम इंडिया ने they dropped 4 to 5 catches. Abhishek Sharma dropped Saibzada Farhan on 0 and 32. Yeah. Then Shubman Gill at the end dropped Rana Fahum on 6. वो unbeaten 20 of 8 मार गया, ठीक है। Saim Ayub was dropped by Kuldeep Yadav when he was on like 4. A dolly। Absolute dolly that he dropped, right? And then at the very last ball of the innings, अगर फील्डर अपनी जगह पे खड़ा होता, if he was manning the boundary on the drop, boundary, वो भी वैसे stupidity थी। हाँ, I don't know why that fielder wasn't on the boundary, but that 6 would have been a wicket as well had they caught that catch. So that's 4 to 5 catches dropped. They missed a run out. They bowled so many no balls. पाकिस्तान एक तो दी नहीं नो बॉल, एक तो वाइड नहीं दी। हाँ, एक वाइड और एक नो बॉल नहीं दी। बुमराह की नो बॉल थी और हार्दिक की वाइड ही थी, बट इसी वजह से नहीं हारा पाकिस्तान। नहीं, उससे फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। पढ़ क्या जाना था? कोई फर्क पड़ना ही नहीं था। चलो फ्री हिट पे छक्का मार लेते 177 हो जाता। 2 जो फ्री हिट्स मिली थी उसमें तो छक्के नहीं मारे, और वाइड हो जाती तो 178 हो जाता। इन लोगों ने फ्री हिट तो जाया की है। 178 यार वही वाली बात है यार। देखो, there are so many mistakes that India made over here. They're dropping catches for fun, village level fielding. In that first innings, Abhishek Sharma had the best catch जो finally उसने पकड़ लिया। Second best catch was Mohammad Haris in the stands, right? ठीक है ना, बात तुम सहमत हो? रन आउट मिस किया वरुण चक्रवर्ती ने। India were literally just giving Pakistan chance after chance in the field. Jasprit Bumrah goes for 45 runs in his 4 overs. It was his only the first time he crossed 40 or conceded more than 40 runs in a T20I since September 2022. That's when he did that versus Australia. ये गौरव नंदन त्रिपाठी, shout out to you, उसने stat बताया था। TNT, it's dynamite। सादी बुमराह bowled 3 overs in the power play, which I don't understand by the way. Sky करी जा रहा है ये गलती। अगर आप लोग हमारा लाइव सेशन कल देख रहे थे और उससे पहला वाला देख रहे थे और उससे पहला वाला पॉडकास्ट देख रहे थे, तो हम यही बात कर रहे हैं कि क्यों 3 ओवर दे रहे हो? या तो वो फिर फुली फिट नहीं है जो उसे इस तरह यूटिलाइज किया जा रहा है, फिर बिठाओ। या तुम 3 ओवर दे के अपने आप को हैंडीकैप कर रहे हैं यार ये लोग। बहुत बड़ा हैंडीकैप कर रहे हैं। अब मैं यही बता रहा हूँ कि इंडिया डिस्पाइट बीइंग द बेटर टीम इजीली there's still holes in them. They made so many mistakes, right? We talked about the fielding. We talked about Jasprit Bumrah conceding the most runs he has since September 2022. 45 for none. Yeah, none for 45 in 4 overs for Bumrah is ridiculous. His 3 overs in the power play, जो Sky की गलती थी, he went for 34 runs and didn't take a wicket. That's his worst ever performance in a power play ever throughout his career. T20 career, not T20I. T20 career में ये worst ever performance थी बुमराह की in the power play. And Sky makes 2 mistakes. He bowls 3 overs of Jasprit Bumrah in the power play, and then he also gives Shivam Dube 1 over too many. 1 over 2. हाँ, वो हार्दिक पांड्या का ओवर 18th ओवर शिवम दुबे करा गया, 17 रन कंसीड कर लिए। दुबे डिलीवर्ड। हाँ दुबे यार 3 ओवर्स तक तो ही वाज द बेस्ट बॉलर। ही मार्कस नॉर्थ, ठीक है, वो जिसको लॉर्ड्स 2010 याद हो। सारे बॉलर्स खेल लिए थे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के। मार्कस नॉर्थ टुक अ 6 फॉर, ही इज ऑन द लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड। वो थोड़ा ज्यादा ही कर गया था। मार्कस नॉर्थ वाजंट
bowler. He was a batter. Anyway, Dubey उससे तो बेहतर ही है खैर. But in 3 overs he had taken 2 for 16. I think he bowled well. Spongy bounce जो था उसका फायदा उठाया उसने. He did. और I was like pace variations के साथ bowl किया उसने. And he was also kind of pitching it short. उस टाइम पे मैं कह रहा था कि यार ये पागल है, इसने दुबे को ओवर दे दिया, मगर वो बहुत जीनियस डिसीजन था. He clearly knew something that I didn't. Sky. Obviously पिच इस तरह की थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा और गुस्सा पाकिस्तान पे चढ़ा. राणा फोम ने पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कराई. राणा फोम ने पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कराई और फिर यू ट्राई हुसैन तलत. Yeah, you just give him an over. वो भी 125 के इर्द-गिर्द ही कराता है यार. हाँ, उसको करा सकते थे. मगर मगर राणा फोम को तो आपको डेफिनेटली पावर प्ले में ओवर देना चाहिए. हुसैन तलत था क्यों टीम में? मोहम्मद नवाज था क्यों टीम में? अगर बॉलिंग नहीं अच्छा करवानी थी खैर मोहम्मद नवाज को तो खैर मैं ये भी समझता हूँ कि they saw that Akshar only bowled a single over and he's also a slow left You armer. bowl a single over if you say कि he's the best spinner in the world. ये भी है. Hypocrisy. हाँ मतलब देखो, even though that was dressing room talk being said in front of the media. Don't say it in front of the media. I mean they're backing their own players up. उससे मुझे इतना मसला नहीं. Don't call him the best spinner in the world. Say कि he's been performing exceptionally well. अगर उसको बैक करने के लिए बोला था तो मुझे इतना मसला नहीं उससे. But then के again बाद फिर ये भी करना होता है कि you do back him ना bro. एक आधा ओवर आप ट्राई कर सकते थे. But I feel like after शिवम दुबे's performance राणा फॉर्म के 4 बनते थे. वो आप लेट लाए, पावर प्ले में लाते. आपने वो गलती की. बट ये देखो ना, I honestly would have opened the bowling with Rana Foam yesterday. यार हाँ कर सकते थे आप. साइम की जगह राणा फॉर्म को दे सकते. खैर थोड़ी हाइंडसाइट वाली बात है. ये थोड़ी हाइंडसाइट वाली है, मगर पावर प्ले में तो ओवर दे सकते थे. ये हाइंडसाइट वाली की बात नहीं. स्पेशली व्हेन अब्रार वाज टेकन अपार्ट. हां, और आई थिंक मैंने लाइव में ये बोला भी था. मुझे कुछ याद आ रहा है ऐसा. पता नहीं. बट एनीवे, शिवम दुबे had delivered 2 for 16 in 3 overs. He was their India's best bowler at that point. Then he's taken for 17 runs in his last over. That was Hardik's over. Should have been Hardik's over. Sky की 2 गलतियां हो गई. So 2 mistakes by Sky. 4 to 5 dropped catches, run out missed by India, no balls bowled. Pakistan have taken down Jasprit Bumrah, none for 45, Kuldeep 1 for 31. So 1 for 76 in those 8 overs. Despite all of these things, Pakistan lose, and not just lose, Pakistan were decimated. Lose की बात ही नहीं. The game was done in the power play of the second innings. यार वो तो चलो उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की. अभी बॉलिंग पे भी आएंगे हम हमारी, लेकिन आपने स्कोर डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस 171 की है. When you were 90 in 9 overs. Yeah, basically you were 55 for 1 in the power play and we were like, we'll take it. India. बेस्ट कर दिया. आपका भी बेस्ट पावर प्ले इंडिया के खिलाफ. वंडरफुल. 91 for 1 in 10 overs. At the 10 over mark, Pakistan were 91 for 1, and that's the point where you're thinking, okay, what's the worst that could happen? They double up, and the best that could happen is they get to 190 or 200. Now, we knew from the start, बार-बार मैं कहता, you need a minimum of 180 runs to challenge India, not beat, challenge. हमने तो पास स्कोर 185 बोला था just by the way. India can fluke their way to 170. इतनी अच्छी बैटिंग है उनकी कि वो सी गेम खेलकर 170 तक पहुंच सकते हैं. You left so many runs out there on the in the middle. 15 to 20 runs you just left out there in the middle. You had 9 wickets in hand. आपके 15 over mark पे runs थे 119 for 4. So you scored 28 runs in 5 overs after being 91 for 1 in 10 overs. Losing 3 wickets. Losing 3 wickets. और वही बात है यार कि क्या करना था एक्स्ट्रा बैटर का. Overs 11 से लेके overs 17 तक एक बाउंड्री नहीं मारी. 0. और फिर वो सलमान अली आगा ने 6 मारा था और उसके बाद फिर लीव कर दी थी. Exactly. दो दफा लीव कर दी थी. वो राइट नेक्स्ट बॉल लीव की थी. Not a solitary boundary from overs 11 to 17. This is not modern day cricket. Don't fool us. आपने शुरू में पॉजिटिव स्टार्ट लेने के बाद हक दिया मैच के ऊपर. 119 for 4 and 15 overs. उसके बाद भी आपने 2 ओवर गंदे खेले. 10 रन बनाए अगले 2 ओवरों में. And then you score what? 42 runs in the last 3? Something like that, because you end up scoring what, 52 runs in the 20 रन 8 बॉलों में तो राणा जी मार गए थे. 20 रन तो 8 बॉलों में राणा जी मार गए थे. वो भी शुभमन गिल ने चांस दिया आपको. वो 6 पे आउट हो सकता था. ड्रॉप हो गया. खैर राणा जी तो यार he was one of the really good performers of Pakistan. He didn't really put a foot wrong. Unbeaten 20 of 8. And then he goes on to take 1 for 31 in 4 overs. So उसको मैं fault नहीं करूँगा. ना राणा जी की क्या ही गलती. उसकी कोई गलती नहीं है. हारिस रऊफ की भी गलती नहीं है. He was Pakistan's best bowler with 2 for 26 in his 4 overs. उन दोनों को मैं कह रहा हूँ कि उसको पावर प्ले में नहीं लाना. उसको पावर प्ले में नहीं लाना चाहिए. प्लीज बस कर दो उसको पावर प्ले में लाना यार. इतनी एविडेंस है आपके पास. देख गए हैं, थक गए हैं देख के. थक गया हूँ, अग गया हूँ, मसले नहीं मुकते. बस कर दो. हारिस रऊफ को just save him for the death. और चलो पावर प्ले के फौरन बाद ले आओ. डेथ में मिडिल टू डेथ में यूज करो ना उसे. दो मिडिल में करा लो, 2 डेथ में करा लो यार. Anyway, playing him was the right call. वो एक फैसला ठीक कर लिया रऊफ को खिलाने का. I think overall team composition apart from Hussain Talat coming in for Hassan Nawaz ठीक ही थी. Both teams. India also did the right move to bring back Varun. Varun and Bumrah came back for Arshdeep and Harshit, so उनकी तो बेस्ट टीम खेल रही थी. उनका बल्कि एक मसला ये कि संजू दा क्या कर रहे हैं टीम में. संजू सैमसन is batting out of position. I love संजू सैमसन, लेकिन
अगर वो ओपन खेले तो Yes. वरना नहीं खेलना चाहिए उसे। नहीं भाई, we've got जितेश शर्मा who's a proper role player, middle order, lower middle order में आकर वो aggressive cricket खेल सकता है. I think Sanju is the only weak link in this Indian team right now. मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी उनकी परफेक्ट टीम भी नहीं खेल रही और वो इतनी अच्छी। Exactly. नहीं खेल रही. You've got Jaiswal and Iyer not even on the bench. They're not even here. UAE में ही नहीं है, वो squad में नहीं है. Prasidh Krishna squad में ही नहीं है. 3 प्लेयर जो मेरे नजर में होने चाहिए थे for India to assemble an invincible squad. This is not even like they could have a more invincible squad than this. Point is, और संजू सैमसन वाकई वो मुझे नहीं समझ आ रही क्या कर रहे हैं वहां पे. They probably try him one more time. अगर खिलाना था तो ओपन खिलाते, लेकिन आपके पास गिल है तो ना खिला। और जितेश पड़ा हुआ है जब दुनिया में, वैसे ही यार हर टीम के पास इस तरह के प्लेयर नहीं है. पाकिस्तान के पास नहीं है. लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में कीपर है जो हिटिंग पावर हिटिंग कर सके. नहीं है। नहीं है. जितेश में आपके पास है, उसको खिलाओ. पूरी दुनिया में कौन है? पूरी दुनिया में कौन है? लोअर मिडिल ऑर्डर में मुझे लोअर मिडिल ऑर्डर में मुझे सोचने दे. जॉश इंग्लिश भी ऊपर आता है. बटलर ऊपर आता है. स्लैश सॉल्ट. क्लासन हैज रिटायर्ड. आई एम नॉट श्योर. वो भी लोअर मिडिल ऑर्डर. तो फिर डिकॉक इज बैक वहां पे. वो अनरिटायर हो गया. वो भी टॉप ऑर्डर. न्यूजीलैंड में साइफर टॉप ऑर्डर नहीं है ज्यादा. कुसल मेंडिस टॉप ऑर्डर. टॉप ऑर्डर. शे होप टॉप ऑर्डर. रहमानुल्लाह गुरबाज टॉप ऑर्डर. नहीं है. So India have got this luxury in Jitesh Sharma that they've got a keeper batter crazy. who can bat at an astronomical rate in the middle and lower middle order, and yet they're playing Sanju. तो वो एक गलती उनकी कह लो टीम में. They've got 2 brilliant keepers who can, एक ऊपर खेल सकता है और एक नीचे खेल सकता है. यार क्या तो मुझे समझ नहीं आ रही. हाँ, लग्जरी तो खैर बहुत है. They've got a wealth of riches and resources to pick from, but Sanju is the only weak link. मैं बात क्या कर रहा था जहाँ से हम ये tangent पे निकले? उनकी टीम की बात कर रहे थे हम कि संजू क्यों खेल रहा है. हाँ, मगर उससे पहले क्या बात कर रहे थे हम? कि बुमराह और वरुण वापस आए थे. हाँ, टीम कॉम्पोजिशन की बात. Point is Pakistan took them down. Despite that, you end up with what? You score 80 runs in your last 10 overs when you had 9 wickets in hand. Death overs में भी आखिरी 3 overs में 42 runs किए. उससे पहले तो 2 ओवरों में आपने हक दिए. पता है, मैं जाने देता अगर ये 171 for 10 होते हैं. मारने गए, नहीं लगी, इनसे आउट हो गए. Exactly. I would have been fine. But when they're dead batting, Nawaz 4 balls or 5 balls dead batted and then 2 leaves by Salman Ali Agha, वही मैं कह रहा हूँ, you scored 171 in 19 overs. And then India did as many favors as possible. They kept dropping catches. उसके अलावा भी डॉट बॉल्स होंगी, पता नहीं. अब मुझे वो नहीं पता कितनी डॉट बॉल्स खेलनी है. अच्छा, catches don't always win you matches either. अब तो हो ही गया. बांग्लादेश ने भी प्रूव किया. They dropped catches. Sri Lanka didn't. Bangladesh beat Sri Lanka. And now India dropped like 4 to 5. Pakistan dropped 1. Essentially, Nawaz wala na गिरो तो Sahibzada dropping. Abhishek is the only dropped catch. But Pakistan was scrappy in ground fielding. Really bad. Ground fielding बहुत scrappy. Really bad. Either way, India could not have like had a poorer game. This was their off day. You couldn't catch them on their off day, and that just tells you the quality of this side. You could have. You could have if you just played better cricket. That's it. ये नहीं है कि उन्होंने आपको आउट क्लास की है. आप होए हो आउट क्लास. बिल्कुल. आप खुद होए हो. आपने कहा आओ करो हमें. मतलब फर्स्ट 10 ओवर्स में अगर आप 91 स्कोर कर रहे हो अगेंस्ट इंडिया इन दुबई. Yes. I thought that was a great start. And you already know कि एक तो यार India is a really tough team to outbat, and then you also know that the pitch is now started to ease out in the second innings. If anything, you need more runs. You've got wickets in hand. You throw the kitchen sink at it. But no, आप 10 to 15 overs में 28 runs किए. Last 10 overs में 80 runs किए. And then as Saad mentioned, overs 11 to 17 did not feature a single boundary. अच्छा, just by the way, तुमने बात की है ना pitch की eased out. I feel कि throughout same ही थी. अच्छा. हाँ. खैर, there was no due. हाँ, मुझे कुछ difference नहीं नजर आया. Well, 2 teams have chased totals in 2 games comfortably. तो आप सोचते हैं वो तो एक aspect ये भी आ जाता है ना कि setting up a total और पाकिस्तान struggle देता है. Yes. I don't think pitch में कोई उस तरह के demons थे. थोड़ी spongy थी जो बैक ऑफ द लेंथ बॉल थी, वहां पे ट्रबल कर सकते थे आप. नहीं, आपने वो भी गलत किया. द प्लान वर्सेस अभिषेक शर्मा हैड टू बी टू पेपर हिम विद गुड लेंथ डिलीवरीज. सादी, दे डिडंट डू दैट ऑल द टाइम. ये जस्ट बाय द वे, हां, मैच से पहले ना मैंने बेराम को एक प्लान दिया था. मैंने कहा द वे यू कैन कैच अभिषेक शर्मा इज के उसका जो स्कोरिंग रेट है ना ऑन आइदर साइड ऑफ द पिच, दैट इज डीप एक्स्ट्रा कवर रखो और डीप स्क्वायर लेग रखो और वहां पे उसके रन रोको, क्योंकि ये पावर प्ले में वहां से उठाता है. Then Behram ने थोड़ा सा dig deep किया उसके ऊपर. I got Varun and Shayan to get me some numbers. I was like, all right, boys, I need you to do something for me. Love you boys for that, by the way. Love you guys. Yeah. Good areas team. You do us a lot of favors. आपकी वजह से इस quality, इस podcast की quality बेहतर होती है. Yes, sir. So I was like, all right, Varun and Shayan, I need you to give me Abhishek Sharma's strike rate and average on every single length. Yeah. What was the answer? उसके अंदर the only area where he slightly struggles is good length. तो आप outside of good length पे बॉल कराते रहो या stumps को target करो और आप pace vary करो. This was the plan. You needed to pepper Abhishek Sharma. Over there you didn't. What's the result? He scores 24 ball 50 and 74 of 39.
उसके बाद फिर जो हमारे स्पिनर्स ने भी उसको टांगों पे फीड किया। अबरार बार क्या अच्छा? टांगों के बाहर बॉलिंग करा रहे कि यार तू मार, तू घुमा, तू और घुमा, उसने तू फिर घुमाई। आउटसाइड ऑफ स्टंप करा ताकि वो टॉप एज ही निकल वो सके। फिर थर्ड टियर में मारता है दुबई वो वाकई इंटरनेशनल third क्रिकेट tier। स्टेडियम के, जिसकी एब्रिविएशन मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, लंबे लंबे छक्के मारता है यार वैसे अभिषेक शर्मा। रियली इज अ स्पेशल प्लेयर। आई एक्चुअली लव टू वॉच हिम बैट। मैं वाकई, इफ यू वॉच द लाइव यस्टरडे यू वुड हैव आई सीन। लव टू वॉच हिम बैट एज वेल। भाई कमाल प्लेयर। एक बात तो कहनी पड़ेगी, गिल एंड अभिषेक, द वे दे बैटेड एंड द वे दे completely annihilated Pakistan in the power play alone. 69 for 0 पे मैच खत्म था. It was a delight to watch and they were a treat really. मतलब for any cricket viewer that was just some belligerent stuff. They went absolutely berserk और दोनों के अंदाज फर्क. Gill compliments Abhishek brilliantly. वो risk free attacking cricket खेल रहे और Abhishek Sharma is throwing the absolute kitchen sink on it and they continue to back themselves to clear the inning field. Abhishek Sharma at least. वही वाली बात है, not just in the power play, even after the power play. It's insane. और तू notice कर, गिल जब कट मारता है तो गैप हमेशा पियर्स होता है। वहां पे सलमान अली अगर कट मारना शुरू होता है, वही दो फील्डर बैकवर्ड पॉइंट उनको दे ही जाएगा बॉल, डॉट पे डॉट। मोमेंटम का बेड़ा गर्क कर दिया, मां बहन एक कर दी मोमेंटम की यार। डॉट-अथॉन, ब्लॉक-अथॉन तब गए हो। हाँ, नहीं यार, इट्स जस्ट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज़ दे हैड देमसेल्व्स इन अ पोजीशन वेयर दे कुड हैव एक्चुअली कैपिटलाइज्ड। इंडिया गलतियां कर चुका था, इंडिया प्रेशर में था, आप पकड़ सकते थे। अब आपने जब 172 का टारगेट दिया, यू ऑलरेडी नो हाफ द गेम इज गॉन। जस्ट बाय द वे, हमने ये पहले भी बोला था और फिर से एक दफा रिपीट कर दूं, इंडिया था प्रेशर में और हमने ये भी बोला था कि एक टीम है जो प्रेशर अपनी स्किल से ओवरकम कर सकती है, वो इंडिया। बार मैंने ये बोला था कि even they do not drop so many catches if they weren't under pressure. Yeah. मतलब ठीक है, ऑफ डे हो सकता है, मगर थे प्रेशर में वो यार, और प्रेशर काफी बढ़ गया था। और 10 ओवर्स में 91 डाल के प्रेशर आ गया था उनके ऊपर। दुबे बेल्ड देम आउट ओरिजिनली, वो 10 to 15 ओवर्स वाले फेज में, और उसके बाद फिर आपके सामने फिर नवाज एंड सलमान अली आगा बेल्ड देम आउट। या फिर नवाज एंड सलमान अली आगा इंडीड बेल्ड देम आउट बाय डेड बैटिंग एंड लीविंग। I can't get past It is honestly incredible. बाकी सब चीजें एक साइड पे, मगर वो जो हरकत हुई है ना, वो मुझसे भी हजम ही नहीं हो रही कि यार, अच्छा कोई भी टीम होती, ये पाकिस्तान ना होती, कोई भी टीम होती, मैं इतना ही फ्रेजल्ड होता कि यार, are you guys serious? You're playing the extra batter. You've got explosive guys in the kitty. And उस टाइम पे राणा फहूम भी थे, Mo Haris and Shaheen Shah Afridi. Shaheen Shah Afridi is probably your best batter in this Asia Cup. Weirdly enough, he wasn't even used. Low value wicket कर ही भेज दो यार। कुलदीप लगा हुआ है, मार ऐसे जाके। हुसैन तलत की जगह शीनो को ही भेज देते हैं। भाई बैटिंग ऑर्डर तो बहुत फक अप किया ना सलमान अली आगा। should never batted सादी। कितनी दफा बोले, कितनी दफा बोले, कोई एक बंदा सैक्रिफाइस हो रहा था तो मोहम्मद हारिस नहीं, शाहीन शाह अफरीदी नहीं, वो सलमान अली आगा होना चाहिए। जिस बाय द वे सही कंपैरिजन बनता नहीं है इस बात का, लेकिन उस दिन ओमान के अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव ने भी यही किया ना, नहीं आया बैटिंग करने, नॉट बिकॉज कि उसकी जरूरत नहीं थी, इट्स लाइक खेलने दो बाकियों को। ऑलमोस्ट आप भी कर सकते हो, खेलने दो बाकियों को भाई प्लीज। वाकई यू ऑलमोस्ट गॉट द टीम कॉम्बिनेशन राइट। बाय द वे, फहीम को ठीक लाए हो आप। फहीम ठीक, हाँ, फहीम को ठीक लाया, हारिस राउफ के साथ परसिस्ट किए, वो भी ठीक है। ही वाज योर बेस्ट बॉलर। आई थिंक हुसैन तलत की जगह अगर हसन नवाज होता तो दोनों आपकी ठीक थी, दोनों टीम्स परफेक्ट खेल रही होती। यहाँ पे आपने बहुत बड़ा फक अप कर दी है नवाज को खिलाने से। हम नहीं कह रहे कि हसन नवाज बहुत परफॉर्म करता, मगर उसके लिए टेलर मेड थी वो सिचुएशन। इट डिडंट मेक सेंस। जब तलत अंदर आया ना, वो हसन नवाज के लिए सिचुएशन बनी हुई थी, बेशक आ और उड़ा, मगर नहीं भाई, वो ऑपोजिट चले गए। दे स्कोर्ड 80 रन्स इन द लास्ट 10 ओवर्स एंड द गेम वाज ऑनेस्टली डन एट 172। पता था कि यहाँ पे अगर बहुत जल्दी पावर प्ले में विकेट्स ना गिरी तो खत्म है। आपने 2 से 3 मिनिमम लेनी थी पावर प्ले में विकेट्स, और खैर वो तो एक भी नहीं आई, तो फिर तो मैच ही खत्म हो गया था। 69 for 0 in 6 overs, that's game set and match। लेकिन एक चीज, गेम सेट एंड मैच वैसे 48 और 43 पे ही हो गया था, तलत नवाज और सलमान अली आगा 171 पे हो चुका था। लेकिन जस्ट बाय द वे, जहां पे इतनी क्रिटिसिज्म की है, एक चीज की मैं तारीफ जरूर करना चाहूंगा पाकिस्तान की। रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाज गुड। आई सॉ के डबल्स भाग रहे हैं। थोड़ी सी फरहान की फिटनेस पे मुझे थोड़े से क्वेश्चन, फरहान में मैं आता हूं, मैं फरहान पे टाइम लगाना चाहता हूं। थोड़ा सा मुझे मसला है उसकी फिटनेस है, उसके अलावा बाकियों ने बड़ी अच्छी रनिंग की है। इतना आराम से नहीं बचता फरहान, उस पे तो आते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आई एग्री। स्पेशल मैंने पॉइंट लिखा था तो ज्यादा लाइव में मैंने कहा नहीं यार, देव कन्वर्टेड इनफ 2s into 3s नाउ फॉर मी टू मेक अ नोट ऑफ दिस। सो इफ आई एम looking for positives, urgency नजर आ रही थी। If I'm looking for positives, Saadi, so there's running between the wickets. There's the fact that Saim was demoted, right? Opening नहीं कराई उससे, अच्छा फैसला था ये। We given you the numbers. 3 ducks in this tournament before this 21 of 17 in 4 deliveries. तो 4 बॉलों में 3 dismissal थे, 0 runs, 8 ducks in 41 T20Is, right? And then in the first over of T20Is, he was averaging 7.66 with the bat. Everything kind of directed towards Saim being demoted. पता नहीं हसन ने या जैरेड का पीस देखा है या हमारा पॉडकास्ट सुना है। हमारे पॉडकास्ट सुन लो हसन। I think he knows Jared though. I'm not saying he looked at it.
the piece, but यार तुमने मेरी होप्स जो है ना, hopefully ये जो हमारा सारा एक कंसोर्शियम बना हुआ है ना, जब मैं सारी जगहों पे नौकरियां कर रहा हूं, स्लॉग स्वीपर्स, गुड Good एरियाज areas और and प्रो pro स्पोर्ट्स, sports. इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अगर हसन को ये पता चल गया कि साइम को डिमोट करना है तो गुड ऑन यू, ठीक है. चलो, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, साइम्स डिमोशन, हारिस राउफ 2 for 26, can't fault him. राणा फहूम अनबीटन 20 of 8 and then 1 for 31 and 4 overs. ये 4 पॉजिटिव्स आ गए. उसके बाद पावर प्ले आपने चलो 55 for 1 खेल लिया. पहले 10 ओवर, फर्स्ट 10 ओवर्स, first 10 overs were good. That ठीक was है? positive. 91 for 1, positive. And lastly, I don't want to kind of throw Fakhar Zaman under the bus as well. He started like, he looked like $1 million bucks. फखर की क्या गलती? वही तो कह रहा हूँ, नहीं है ना, उसको भी पॉजिटिव्स में डालो. फखर की कोई He गलती नहीं. actually looked like he could really take down India yesterday. वो बुमराह को जिस तरह मारा ना उसने आते सार. अच्छा, जस्ट बाय द वे, फखर जमान की तुमने बात की है, वो जो कैच था, जो कि मुझे ऑनेस्टली पहले एंगल पे 50-50 था. Same. 50-50 भी नहीं था, मुझे पहले एंगल पे लग रहा था कि ये जमीन पे लगी है, लेकिन जब दूसरा एंगल दिखाया तो मुझे लगा कि कैच है. मुझे भी लगा दूसरे एंगल पे कि they are fingers underneath the ball. ऑनेस्ट रिव्यू ये है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा नहीं लगा. और अभी न्यूज आई है कि पाकिस्तान हैज लॉन्च्ड अ फॉर्मल कंप्लेंट्स टू द आईसीसी फॉर दैट कैच जो कि दिया है उन्होंने. That's bloody bizarre. That's what it is. I mean, I don't understand कि क्या ये रोंदियां मार रहे हो आप. This is not the first time this has happened in cricket. यार एक टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है क्रिकेट के अंदर. मैंने कई दफा देखा है ये. This is again not the first time. अगर आपने पकड़ना है किसी को तो वो कैमरे वालों को पकड़ो यार. सही है, डू योर कैमरा वर्क नहीं, और बेटर. वो उनकी लिमिटेशंस है ना. आप, हाँ, अली भाई ये कह रहे थे कि यार मैं चाहता था कि ज्यादा एंगल्स देखे जाते, ज्यादा कंक्लूसिव एविडेंस ढूंढते. वो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, ठीक है. आई एम फाइन ओवर देयर. और अल्टीमेटली दिस वाज अ 50-50 कॉल दैट वाज ऑलवेज गोइंग टू पोलराइज ओपिनियन. हमारे लाइव पे आधे लोग कह रहे थे आउट है, आधे लोग कह रहे थे नॉट आउट है. साधन, आई थिंक दे वर फिंगर्स अंडरनीथ द बॉल आफ्टर वी सॉ द सेकंड एंगल. You told me कि Jared didn't think Yes. that and Ali Bhai didn't Yes, think that. Jared and Ali Bhai both thought कि it's not out. तो ये तो होगा. It comes it's part and parcel of the sport, right? But then again आप formal complaint lodge कर अपने आप को ही शर्मिंदा कर रहे हो. हाँ, लेकिन but then again अगर इस तरह का 50-50 डिसीजन होता है ना, तो हिस्टोरिकली ऑलवेज द बेनिफिट ऑफ द डाउट इज गिवन टू द बैटर. Sure, but how many times have we seen this exact situation play out in the last 5 years and it's gone either way? आई हैव Either way गया ना. मुझे तो कैच ही लगा था, तो मैं क्या कंप्लेन करूं. मैं तो Exactly. डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं. नहीं तुम्हारा नौकरी है तुम्हारी डेविल्स एडवोकेट प्ले करना. मुझे तो आउट ही लगे. हाँ. नहीं यार देखो 50-50 कॉल थी. आई डोंट थिंक कि ऑल हेल शुड बी ब्रोकन लूज जस्ट फॉर दैट or should break loose, but ultimately यार lodging a complaint just makes you look like a sore loser and I'm not for it. और जहां इस चीज की बात कर रहे हैं, थोड़े ऑन फील्ड एंटिक्स की भी बात कर ही लेते हैं. थोड़ी जरा It's important to address these things. ज्यादा हो गया. मैं यार I jumped from one live to another. I wasn't even listening to the commentary. I couldn't tell क्या हुआ है. कल गुड एरियाज के शो पे I was on the receiving end of generational abuse. अच्छा, Generational abuse. खैर बाद में लोगों ने सुपर चैट्स दी जिसमें तारीफ भी की. वो कहते, चलो वो बेहतर है. हाँ, कहते ओ यार राउफ ने की किया, आपने क्या बोल ही नहीं रहे उसके ऊपर. मैंने कहा यार सबसे पहले तो मुझे पता नहीं है राउफ ने क्या किया. ऑल आई सॉ वाज द टीम्स गेटिंग इनटू ईच अदर्स फेसेस. पाकिस्तान वर वर्बली अब्यूजिंग इंडिया एंड दे वर स्लेजिंग देम एंड इंडियाज बैटर्स वर गिविंग इट राइट बैक एट देम. उससे मुझे कोई मसला नहीं है. जस्ट बाय द वे, जो वो अभिषेक और शुभमन गिल ने उसके बाद ट्वीट किया, अब वो करेंगे, वो क्या बनता है. अब अभिषेक की ट्वीट में कुछ गलत तो नहीं था. नहीं वही कह रहा हूं, अब वो करेंगे, मेरे बिल्कुल ख्याल से तो करेंगे. उसकी बड़ी जबरदस्त ट्वीट थी. उसने कहा था यू टॉक वी विल. आप जीत जाते तो आप भी कर लेते ये ट्वीट. बात उसने जबरदस्त कर दी. लगा के आपको यू टॉक वील विन. उसके बाद स्काई ने भी बात कर दी कि ये कौन सी राइवलरी है. उसकी भी बात ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ये लगेंगी बातें आपको, और लगनी चाहिए ये बातें, क्योंकि फील्ड में जब परफॉर्म नहीं करोगे ना, तो उसके बाहर आप जो मर्जी करते रहो, आप जिस तरह मर्जी के एंटिक्स करते रहो, कोई नहीं सुनेगा. इट फॉल ऑन डेफ ईयर्स. यस, एंड वही बात है, ये कंप्लेंट्स विल फॉल ऑन डेफ ईयर्स. मार्जिन एंडी पाइक्रॉफ्ट अभी भी रेफरी है. हाँ है वो. कुछ फायदा नहीं फील्ड पे परफॉर्म करते यार. I mean, let your bat and ball do the talking. सारे चुप हो जाएंगे. You even could have won the Moral Asia Cup, but you decided not to. ठीक है, अब वो बांग्लादेश या श्रीलंका में से कोई जीतेगी. वो सरप्राइजिंगली वहां पे थोड़ी हाँ rivalry easy होगी. वो सब सही जा रहे हैं यार. वहां पे जरा शाकिब और मैथ्यूज चलेंगे ना, थोड़ा इजी हो गया. बात सही है. वो मुशफिकुर रहीम भी नहीं है. थोड़ा इजी. या तुम बात तो ठीक करो. देखो अल्टीमेटली स्काई की बात गलत नहीं है. इट्स नॉट मच ऑफ अ राइवलरी बिकॉज़ इट्स अ मिसमैच. अगर आप जुनेद खान वाली सीरीज से देखो, आ रहा है पाकिस्तान, आने दो. उसके बाद से किया क्या ये तो बैटमैन बन गया. मैं आने दो. उसके बाद से यार आप एक वो अफरीदी वाला मैच जीते एशिया कप में, अश्विन वाला छक्के मार दिए. 152 for 0. चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 152 वाला चेस T20 वर्ल्ड कप एशिया कप में आप जीते. और तो आपको जीते ही नहीं हो, वरना इंडिया ने आपको हमेशा जलीली किया. तो स्काई की बात गलत नहीं है. इट इज नॉट मच ऑफ अ राइवलरी. यस, इट्स स्टिल द
कमर्शियल मदर ऑफ ऑल गेम्स और मदर ऑफ ऑल कमर्शियल गेम्स, Either way, हाँ. और वो रहेगी वो पैसा- इसलिए रहेगी क्योंकि इंडियंस विल ऑलवेज टर्न अप टू वॉच देयर टीम बीट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल नॉनसेंस, And Pakistanis will turn up in the hope कि Pakistan might beat India. वो उम्मीद पे दुनिया कायम है कि वैसे वो टर्न अप करते रहेंगे. जितना भी बड़ा मिस मैच हो, दिस विल ऑलवेज बी अ क्राउड पुलर, दिस विल ऑलवेज बी अ कैश काउ फॉर क्रिकेट. ये क्या किया हुआ है तुमने? कैश काउ बना रहा था मैं. ये कौन सी काऊ है? ये मेरी काउ है. Oh damn. ठीक है, वो तुम्हें मेरी बहुत काउ weird- से मसला है? नहीं, बहुत weird लग रहा है. यार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चलता रहेगा, जो मर्जी जिसको मर्जी मारे. हाँ. बात है कि ब्रॉडकास्ट, अगर मसला है कि ये क्यों खेल रहे हैं, ब्रॉडकास्टर से जाके बात करो, क्योंकि उन्होंने तो पैसे कमाने, सीधी सी बात बिल्कुल, है. और उन्होंने पैसे कमा भी लिए हाँ, पूरे. हाँ. दूसरी बात जो मैं उसके शुरू में बाद ये ऑफ फील्ड एंटिक से शायद ज्यादा ही कमा लियो. देखो, let's rewind. Okay? Rewind. Let's rewind completely. Sky shakes the hands of knackers and Salman Ali Agha in the unveiling ceremony. He gets flack for it. Shit Indian meme pages go wild. They boycott the game as well. जो कि by the way कल नहीं किया boycott. यार वैसे वो बॉयकॉट से हमें कैसे न्यूज़ मिली थी, मुझे समझ नहीं आई. उन्होंने बॉयकॉट कर दिया उन मीम पेजेस ने. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट अगर कवर नहीं करोगे तो मैं कहाँ देखूंगा? वाकई टुक टुक अकेडमी, डिंडा अकेडमी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट, these are the places or pages that I rely on for cricket coverage. When they boycott the game, then मैं कहाँ जाऊँ? It's not like we have Cricinfo in the world or anything else. खत्म कर दो यार हाँ, क्रिकेट. खैर कल तो कोई बॉयकॉट नहीं है. खैर ये शुरू में ड्रामा हुआ, ठीक है. इंडिया डोंट शेक हैंड्स, लेट बताया पाइक्रॉफ्ट को. बाय द वे ये बात आ गई है कि ही वाज टोल्ड मिनट्स बिफोर द टॉस. वो वैसे ही बेचारे को बीच में रगड़ते रहे हो, मैच रेफरी वाली हिल पे डाई करते रहे हो, whereas you should have just fined Sky for politicizing the sport. ठीक है, और मैं ये भी कहता हूँ, if you dedicate a win to victims, that's completely fine by me. करना भी चाहिए यार. When you bring in the army and dedicate it to them, then you are weaponizing the sport. Yes. And when what you saw yesterday from Saifzada Farhan and Haris Rauf, I don't endorse this behavior by the way. उन्होंने भी गलत किया. मुझे हरकतें नहीं पसंद. नहीं, मुझे हारिस रऊफ की तो बिल्कुल पसंद. बिल्कुल पसंद नहीं आई. साहिबजादा पे ये कह सकता हूँ कि there are a lot of people who have done the gun celebration, but it's not good. जब आपकी इमेज ही दुनिया में इतनी खराब हो, आप पिस्तौलें मत ही चलाओ. Bro, MS Dhoni did it as हाँ, well. वही आर्मी ग्लव्स भी पहन कर आया. आसिफ अली did it. तो ये हमने फिर देखा. एडिनसन कवानी यार. फिर भी यू गेट द ड्रिफ्ट, राइट? इट्स अक्रॉस स्पोर्ट. चलो यार ठीक है, व्हाटएवर जो भी कर रहा था. हारिस रऊफ को नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए था हारिस रऊफ को. आई नो कि ही वुड बी गेटिंग एन ईयरफुल फ्रॉम द क्राउड. मैं समझ सकता हूं. और हमें गालियां पड़ेंगी अभी इधर. हाँ. इधर हमारे लोगों से ही पड़ेंगी, लेकिन नहीं करना. हाँ देखो, मैं कभी भी, इफ यू फॉलोड माय वर्क अक्रॉस माय डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, आई हैव नेवर एंडोर्स्ड दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर. हाँ, I condemn it in the sense कि यार I don't like when people make war jokes और war hysteria में और fuel डालते हैं. But then again, पहले से वेपनाइज हो चुकी थी स्पोर्ट. ऑलरेडी माहौल बहुत गंदा हो गया था. 11 लड़के खेल रहे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते. कुछ ना हरकत करनी थी. गलत है. बेस्ट रिस्पॉन्स होता चुप रहना. You get in their face. Yeah, get in their face, that's fine. हाँ, I don't mind that. वहां पे लड़ाई करो. Completely fine with that. जो अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के बीच में हो रहा था, अच्छा है वो. मुझे पता नहीं बात क्या हुई है, लेकिन ठीक है, होनी चाहिए ये बात. मेक्स फॉर गुड थिएटर. लेकिन ये जो हरकतें हैं, जहाज गिरा रहे हैं, और मुझे पता ही नहीं था कल यार, मुझे गालियां पे गालियां पड़ रही हैं गुड एरिया. मुझे भी रात को बहुत देर बाद कह रहा हूं यार ये क्या, मुझे आई हैव मिस्ड दिस क्लियरली. बट इफ यू फॉलोड माय कंटेंट, यू नो कि आई नेवर कंडोन दिस बिहेवियर, आई नेवर एंडोर्स इट. गलत है. इन लोगों ने जो किया वो गलत है. फर्क कोई नहीं रह गया यार. आपने वही हरकत कर दी, आपने भी उल्टा वेपनाइज कर दिया. ठीक है. जस्ट बाय द वे, एक मुझे बात पे तब जरूर चढ़ी है. उस दिन सिद्रा अमीन ने अपनी 6th सेंचुरी मारी, जो इन लोगों ने उसको 6-0 बना दिया, जो कि वो सिर्फ 6 सेंचुरीज कह रही थी. वो आपके दिमाग में, देखो, वो आपकी इनसिक्योरिटी है. अच्छा, मैं एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ. मुझे ना डेली गालियां पड़ती हैं. आई कॉप अब्यूज ऑन द रेगुलर फ्रॉम इंडियंस एंड पाकिस्तानीज. इंडियंस एंड पाकिस्तानीज. पता है आप कर क्या रहे होते हो? आपको बायस लग रहा होता है, वो होती है ऑब्जेक्टिविटी है. और आप जो आपको बात पसंद नहीं आएगी ना, आपके जहन में है वो सब कुछ. एग्जैक्टली. जो आपके अंदर दिमाग में आपकी गंद फंसा हुआ है ना सारा, वो निकल रहा है दूसरे के ऊपर. ऑल द बुलशिट दैट यू हैव इन योर ओन इनसिक्योरिटीज, सब कुछ वो योर इनसिक्योरिटीज, योर हेट फिल्ड माइंड्स, यू आर प्रोजेक्टिंग योर ओन बायसेस एंड हेट ऑन टू मी by saying कि तुम हो रहे हो ये. मैं कभी भी ये नहीं करता. और मैं अभी भी कह रहा हूं, whilst I can understand कि ऑलरेडी माहौल गंदा हो गया था, मैं फिर भी कहता हूं इन लोगों ने गलत किया. नहीं करना चाहिए. वो एक्शंस अच्छे नहीं. You are also stooping down to that level. कोई फर्क नहीं रह गया. मॉरल एशेस में दोनों जलील ही हो इस वक्त. मॉरल एशेस कहां से आ गया ब्रो? मॉरल एशेस कहते हैं. मॉरल एशिया. I do not give a shit about मॉरल एशिया कप. मैच जीतो, बातें करो. असल एशिया कप जीतो. मैच जीतो ना, ये क्या है? Both of these teams have really, जो आर्मीज के बीच में वो एक अलग चीज है. Yes. ठीक है, ये क्रिकेट मैच है, ये स्पोर्ट है. मगर both teams have politicized and weaponized the sport, and I'm not fond it. I'm not fond of it. I do not like this ugliness, but unfortunately अब ये reality है. But we'll always make time to call this shit out on our show because you know what we're about. यार मैं उस दिन मैंने कल मैं ट्वीटिंग स्प्री पे निकला.
I ended on one tweet where I said कि यार जहर लगती है मुझे चीजें, नो हैंड शेक्स एंड देन दिस पोलिटिसाइजेशन स्लैश वेपनाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट, आई हेट इट, मुझे कोफ्त होती है, ठीक है, इट eats away inside of me and I absolutely abhor this behavior. जहर लगता है मुझे. But at the same time, I suppose Saad, you and I, and then everyone at Good Areas, और अभी जो मैं slog sweepers पे अली भाई के साथ कह रहा हूँ, 3 platforms है, Good Areas, Pro Sports, Slog Sweepers. At least we can be proud that we have built somewhat of a community over here of cricket lovers, which is based on love, peace, mutual respect, and just the love for the sport. And we're grateful to you for that. Yes, और वो है क्या community जो pro sports की है, वो जानीज है. यानीज. आप लोग यार इससे बेहतर से सेगवे नहीं मारा. तो तुम मारने दो ना. जानीज ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन सकते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड पे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है. उसको ज्वाइन करने के 2-3 तरीके हैं. सबसे पहले पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं. इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर. वहां से भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं 1500 रुपीज पर मंथ पे. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, और आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स मिल जाएंगी, वहां से कर लेना. वरना उसके अलावा पूरा जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वो फ्री है आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए. जानीज की ये तरीके हैं और कुछ तरीके अब आपको बहराम बताएगा. Yeah, so if you live under a rock in 2025 and still don't have online banking, don't worry. Saad, Mahoon and I have got you covered. All three of us live in Islamabad and our studio and office is situated or located in the E113 Markaz. तो आए और मुंह पे मारे 1500 रुपए. And per 1500 payment, we will make you a Jani the podcast for 1 month. And of course, if you gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey, we will make you a Jani the podcast for 6 months. बाकी यार वही बात है, inclusive community है. अभी मैंने एक community building वाली बात की है. Jani's उसकी number 1 मिसाल है. Yes. Indians and Pakistanis are living there in unison, in peace, talking about cricket, everything civil. वो जंग छिड़ गई, वहाँ कोई बदतमीजी नहीं हुई, तो ये तो छोटी चीजें हैं भाई. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बदतमीजी नहीं हुई, इधर बदतमीजी नहीं हुई, सारों ने क्रिकेट की बात की है. बट अफसोस कि हुआ कहाँ पे गैप्स है पाकिस्तान टीम के, कहाँ पे गैप्स हैं इंडियन टीम के, जो कि 1-2 हैं. हाँ, और देखो फख्र महसूस होता है चाइनीज पे और सारी जगहों, सारी फख्र जमान नहीं, हाँ चलो वो भी मुझे पसंद ही है. इन पे तो फख्र महसूस होता है. जानीज, गुड एरियाज का पेट्रियन और जितने लोग स्लॉग स्वीपर्स देखने आते हैं, तमीजदार बात होती है, बहुत फख्र महसूस होता है. उधर भी जाके सब्सक्राइब करो, सब जगह सब्सक्राइब करो. मगर उतना ही अफसोस होता है कि जो एक्चुअल क्रिकेटर्स हैं, दे हैव एक्चुअली सकम्ड टू वॉर हिस्टेरिया, और वो वेपनाइज कर गए स्पोर्ट दोनों तरफ से. मैं दोनों साइडों को कसूरवार कर रहा हूं. हम बहुत बात कर चुके हैं. आई थिंक दैट्स एनफ ऑन दिस. आई रियली वांट टू टॉक अबाउट साहिबजादा फरहान. आई कैन बिलीव वी हैवंट टॉक्ड अबाउट हिम येट. लेकिन उससे पहले मैं एक और बात है. योस्टर्स कह लो, पोस्टर्स हैं. अगर किंग वापस खड़ा होना चाहता है तो उसका पोस्टर ले लें आप लोग सारे. बाबर एफसी वाले पोस्टर तो बहुत खूबसूरत है. पोस्टर बाबर एफसी, आई एम लुकिंग एट यू, यू डेफिनेटली टू बाय दिस वन. शीनो भी कुछ कर ले तो उसका भी ले लो यार. फिलहाल तो दे कैन प्ले हिम, बट चलो एक वो बनी हुई है लाइन, दे कैन नॉट प्ले हिम. नासिर हुसैन को ब्लेम करो. हाँ. उसके अलावा वो पेस यार, पेस यार वाला तो आपको वैसे ही चुक लेना चाहिए. मगर आपस की बात है, ये शाहीन और बाबर वाले भी हैं तो अच्छे पोस्टर्स और आ रहे हैं. शॉप भी आ रही है जिसपे मैंने कोई काम नहीं किया. हाँ, एंड यू कैन बाय द पोस्टर एज इज, जिसका पेस यार है, या सादे अपने पीछे फ्रेम दिखा दे. यस, देख लो. हाँ, फ्रेम वाला ऑब्वियसली थोड़ा महंगा है, बट you have both options, unframed or framed. कोई महंगा नहीं है यार. तुम आओ, मतलब कन्वीनियंस के पैसे दे रहे हो ना आप यार, essentially. अच्छा, साहिबजादा फरहान bro. अच्छा, let's break this down. He starts kind of slow, सही है. Yes. And then he has this little phase in between where he goes berserk. Sahiबजादा Farhan demolishes spin and he absolutely annihilates Jasprit Bumrah. Who knew कि जसप्रीत बुमराह का kryptonite साहिबजादा फरहान होगा दोनों मैचेस में? हाँ, मैं सरप्राइज हो गया. अजीबो गरीब सीन था. अच्छा खासा ये हो गया रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही. ठीक है, ये क्रिकेट नहीं है. Those are 2 big wins. एक तो you were supposed to be a spin basher, especially in the power play. You lived up to that reputation and you absolutely destroyed Jasprit Bumrah. उसको ज्यादा आपने ही कुटा है. फखर ने मारा है शुरू में और फिर आपने मारा है. ठीक है, now you've got your 50 off 34 deliveries. Good. It's versus India. After being dropped on a 0. After being dropped on 0 and 32 तो आपको chances ही मिले. 0 वाला तो कैच पकड़ना ही चाहिए था. 32 वाला मुश्किल था. हाँ, one-handed catch. Similar to what Sahiबजादा Farhan did. नहीं, that was easier. फरहान वाला Similar to what Nawaz did. या चलो अब नहीं, नवाज से इजियर ही था. नवाज से इजियर था. नवाज से यार अच्छा, वो छक्का रोकना इजी था, वो कैच पकड़ना मुश्किल था अभिषेक के लिए. सही है. Anyway, you dropped twice. 0 पे और 32 पे. You've got a couple of chances. You get to your 15-34 deliveries after destroying Bumrah and demolishing spin. Great work. 34 ball 50 will take it. 34 और 51 था ये, मुझे याद है. ठीक है. In the next 11 deliveries, Sahiबजादा Farhan, you scored 7 runs. The go slow was immaculate. पाकिस्तान का ही
उन तीनों लड़कों को भी डालो, तलत, आगा और नवाज और सलमान साहिबजादा फरहान is the guy who starts it all. Here we slow. Here we slow, yaar. Yes, sir. He ends up with 48. Sahiबजादा Farhan ends up with 58 of 45, a strike rate of 128. Oh, yeah. This is not a par knock. नहीं, It is it's not. below par. This is a below par knock. यार हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे शादी कि यार 60 बॉल में अब सेंचुरी स्लो है. Slow. हम कह रहे थे 55, 54 बॉल्स में सेंचुरी करो. 45 ball, Because 58 यार. कायदा तो यही कहता है. अच्छा, कैचअप नॉक क्या होता है? आप पहले स्लो खेलते हो, बाद में कैचअप करते हो. दिस इज अ रिवर्स कैचअप नॉक. और ये हमने पहले भी पॉइंट कई आउट दफा किए. कई दफा ये करता है ये. वो किस चीज पे आता है? Is that I don't know 50 के बाद तो आपको और कैश इन करना पता चाहिए. है क्या होता है? फील्ड खुलती है, एक तो इसकी अटैकिंग शॉट्स भी कम होती हैं. फील्ड के बाद पावर सिंगल ही निकाल सकता है ना. वो तो ठीक है, लेकिन पावर प्ले में तो नहीं आई ना इसकी 50. तब तक तो तेज ही खेल रहा था. ट्रू मुझे शक है इसकी फिटनेस का. है, इसकी फिटनेस काफी डॉजी लग रही थी, थक गया था. एंड में आउट किस तरह हुआ है? बैट बॉल हाथ से निकल गया है, हफ्ड एंड पफ्ड. वो तो हमारा अमार जहीर द यूनिसेगा चैंपियन ने पॉइंट आउट किया. मसूद भी चैंपियन. अमार जहीर तो जानी है. अमार जहीर ने पॉइंट आउट किया है ड्यूरिंग द लाइव. उसने बोला था ही इज हफिंग एंड पफिंग. या और फॉर यू अ couple of balls later बैट हाथ से छूटा है और बस गया. Not the first time we've seen a go slow from Sahiबजादा Farhan in the sense कि after he gets to his 50 he slows down impeccably. यार तू 50 पे आउट हो जाए. हाँ, तू वही आउट हो जाएगा. तू 50 पे आउट हो जाए. 51 of 34 की तरह 51 of 35 पे तुम आउट ही हो जाते हैं. up until 50 you're great. 11 balls 7 runs, that's basically 2 overs for 7 runs. क्या किया आपने? This is not a plus knock तो दूर की बात है. This is not even a par knock. It's a net negative. No. It is a net negative knock in the end because क्या पट लिया आपने? 45 balls खेल के more than 1/3 of the innings and you only scored 58 runs. Scared किए हैं वैसे, scared निकलने वाला था, ये स्कोर नहीं किए. तो बेसिकली 7 बैटर्स में से 4 बैटर्स ने तो नेट नेगेटिव नॉक किया. अच्छा कौन खेला फिर? फखर, राणा फहूम. बस. Damn. And Farhan up to his 50. हाँ, and Farhan up to 50. वो भी तुम्हें याद है शुरू में स्लो था, he picked up the pace and then he just had a complete go slow, right? Here we slow. It's weird. यार आप मतलब क्या आप अब तक ये नहीं समझ पाए कि T20 क्रिकेट में you have to consistently keep the scoring rate up? How are you starting well and then just completely declining? Not just Farhan but as a team. पाकिस्तान ने की है 91 for 1 in the first 10. मैं मान नहीं सकता था उस पॉइंट पर. अगर तुम मुझे कहते ना कि 180 भी नहीं करेंगे, 80 रन करेंगे आखिरी 10 ओवर्स में. Couldn't have imagined it. 80 runs आखिरी 10 ओवर्स में. If you lose 9 wickets, I like यार नहीं हुई इनसे बैटिंग. इसमें तो उसकी गलती है स्काई की. दुबे should have never bowled the last over. Although that one I still understand. जब किसी ने 2 for 16 लिए हो तो चौथा ओवर चलो दे दिया, मगर मेरे नजर में वो पांड्या का ओवर था. बुमराह का सिर्फ एक ओवर था उसके बाद. सही है. उसके बावजूद 80 runs in the last 10 overs और बुमराह को क्या 11 रन तो बढ़े हैं उस ओवर में. 28 runs from over 10 to 15, 11 to 17 के दरमियान में बाउंड्री नहीं. मतलब यार at this point we're repeating ourselves, but इतना इस चीज का दुख है ना कि you were in a position of क्या कहते हैं a stronghold. आप ऊपर थे. You were ahead. So basically आपने first 10 overs में 91 for 1, last 10 overs में 80 for 3. अच्छा 4 ही आउट हुए टोटल. 80 for 4, 5 आउट हुए यार, हद हो गई. या विकेट घर ले गए हो. आई फील फॉर मोहम्मद आरिफ. 5 ही हुए ना आउट. शाहिद शाफरी इज प्रॉब्ली थिंकिंग यार मैं लाहौर कलंदर्स का भी कैप्टन होता ना तो यहाँ पे मैंने अपने आप को ऊपर भेजना था, मैं उसके साथ ही होता. अगले ने 62 रन मारे हुए थे 30 बॉल्स में. ही वाज अनबीटन इन द लास्ट 2 गेम्स. ही स्टिल हैजंट बीन डिसमिस्ड इन दिस एशिया कप. खैर सादी क्या ये बहुत बात करें. शाहीन अफरीदी की बॉलिंग ही बात. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जरा तू स्कोर कार्ड निकाल, एक एक करके सारी को बॉलिंग पे आओ. शाहीन अफरीदी की मुझे फिगर्स नहीं याद. I just want to know how bad they were. हारिस रऊफ और राणा फहूम की तो बात कर ली थी ना. 2 for 26 for रऊफ, 1 for 31 by राणा फहूम. दोनों अच्छे थे, मुझे दोनों पसंद आए. शानदार. सबसे एक्सपेंसिव से स्टार्ट करें या लीस्ट एक्सपेंसिव से स्टार्ट करें अपार्ट फ्रॉम दीस टू? I think least expensive से करो. Keep getting progressively worse. शाहीन अफरीदी 3.5 overs, none for 40. तुम अभी प्रोग्रेसिवली बैड हो रहे हो यार. शाहीन मेरी जान अभी समझाया था, पहले भी आपको पता होना चाहिए था. अगर मैं डेटा निकाल सकता हूँ वरुण और शायान से, आप लोगों के पास तो एनालिस्ट बैठे हुए थे. आपको नहीं पता कौन सी लेंथ पे फंसता है वो. अगर थोड़ा सा फंसता है अभिषेक शर्मा, वो कह रहे कि कराना, फिर फुल बॉल करा दी, टांगों में फुल टॉस दे दी, बच गया, सिंगल हुआ सिर्फ. आते के साथ ही उसे लेग साइड पे बाउंसर क्यों? लेग साइड क्या? अच्छा साथी, अगर कराना था ना बाउंसर, यार फाइन लेग लो. शॉर्ट फाइन का फील्डर रखा था, आपने बाउंसर करा दिया. अभिषेक शर्मा को who can clear the in-ring field with ease anyway? That is stupid tactics.
बहुत ही तब ये यार नहीं, मुझे तुमने क्या याद करा दिया? मुझे याद है मैंने जो उस वक्त कहा था कि सादी शॉर्ट फाइन रखकर बाउंसर पेल दिया अभिषेक को, जो पता है शॉर्ट और फुल पे मारता है, गुड लेंथ पे फंसता है। और लेंथ तो थी ही खराब, हाँ, लाइन उससे भी गंदी, लेग साइड पे बिल्कुल। करा दिया। मुंह में दे दी कि मार इस बंदे से ऊपर ही, अंदर इतना सामने खड़ा किया हुआ, तू ले इसके ऊपर चौका छक्का मार, तेरी नहीं भी लगेगी ना चौका हो जाएगा तेरा। पता नहीं क्या किया। he didn't have to go for the magic deliveries, you had to vary your pace at a good length, simple as that। अभिषेक के खिलाफ प्लान ही यही है। अगर हम फिगर आउट कर सकते हैं यार, तो आपसे क्यों नहीं हो रहा? आपकी तो नौकरियां हैं फुल खेलने वाली, ये वाली गेम, हम तो सिर्फ बात करते हैं गेम पे। शॉकिंग। अच्छा, वरुण और शायान are not even 25। Yeah, they're younger than 25। कौन इनके एनालिस्ट कौन है फिर? पता नहीं, वो आलू बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां पे, मुझे नहीं समझ आती। मैं टैक्टिक्स वाइज तो काफी डिसअपॉइंटेड हूँ। आलू बाय द वे हमारे लाइव सेशंस में आता है। हाँ आता है वो। आलू। राणा फहूम को जो पावर प्ले में ओवर नहीं मिला ना, मैं फिर कर सकता हूँ, आई कैन लुक पास्ट दैट। जो बैटिंग ऑर्डर में फकअप्स किए हैं, और फिर जो इंटेंट वाले फकअप्स किए हैं, और फिर जो ये ग्लोरियस not knowing what deliveries to bowl to Abhishek वाले fuck-ups किए, these are hard excuse। Just by the way, मुझे एक बात याद आ गई, मैंने मजहर रशीद का एक ट्वीट पढ़ा था रिगार्डिंग after that 2021 game, Shaheen Shah Afridi has taken 1 wicket versus India at an average of, I want to say, 126 and economy 9.3। 9.1 यार सादी nearly, I've seen that tweet once। 9.1 shout out to Mazhar Rashid। एक और स्टैट फिर पढ़ी, इसकी टाइमलाइन ही खोली तो पढ़ लेते हैं। स्काई वर्सेस हारिस राउफ इन T20s, he scored 11 runs off him and he's been dismissed 3 times in 10 deliveries। deliveries नहीं लिखी हुई। I think he's been dismissed thrice in 10 deliveries by Wreck-It Ralph। 3.67 की एवरेज। थोड़ा बनी अलर्ट सिचुएशन तो वहां पे है, स्काई से हारिस राउफ नहीं खेला जाता। नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग दिस। अच्छा, तुमने तो लिखा है ना 2 out of 21 इंडिया हारा है in the past 21 matches। हाँ, 2 हारा है सिर्फ। out of the last 35 3 हारा है। You're shitting me। देख लो यार, एक तो the incredible bit over here is that this is a very volatile format। T20 क्रिकेट में आप मैच हार ही जाते हो। India have lost 3 in the last 35 क्या कहते हैं T20 as they've played। If you look at them in white ball cricket, they're an absolute juggernaut right now। टेस्ट क्रिकेट में थोड़े हल्के हो गए पहले से, रिटायरमेंट्स आई हैं कुछ, और वैसे ही आफ्टर दैट न्यूजीलैंड सीरीज ग्राफ थोड़ा बैठ गया था। बट इफ यू लुक एट देम इन white ball cricket, they lost 1 game in the ODI World Cup at home, the final versus Australia। They won the T20 World Cup unbeaten, they won the Champions Trophy unbeaten, and I've got my money on them winning the Asia Cup unbeaten। मैं पहले कह रहा था ना कि it would be a failure for India if they lose this Asia Cup। It would be a failure for India if they lose a game in this Asia Cup। हाँ, वहां पे आ गए हम सादी। They are actually that good। They are that good। और आपको शायद ये बात काट रही हो अगर आप पाकिस्तान सपोर्टर हो, मगर आप इस चीज को हजम करें। अब हजम करना सीखो ना। हम जब वो तो आपको इस मैच में हजम कर 2 मैचों में हजम कर डकार टकूर भी मार चुके हैं। मेरा पॉइंट ये है कि कब से हम कहते आ रहे हैं, सबसे पहले रियलाइज करो। सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियलाइज जी, इट्स नॉट जस्टिस, इट्स जस्ट अस। सब कुछ कर लो कि सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो ना कि आपकी टीम नहीं अच्छी। कितनी दफा बोले यार ये। और यहाँ पे तो गल्फ दिखा दिया उन्होंने आपको। और फिर डिमांड करो, अकाउंटेबल ठहराओ जो है हमारे पीसीबी में, कि क्यों नहीं अच्छी, क्यों नहीं काम हो रहा लड़कों पे, क्यों नहीं काम हो रहा है ग्रास रूट्स पे, क्या मसला है यहाँ पे। वहां पे तो वो तो कहां से कहां निकल गए। वहां पे युवराज सिंह टेक्स अभिषेक शर्मा एंड इवन शुभमन गिल अंडर हिज विंग, और उन्हें ये प्लेयर बना देते हैं। पंजाबी बॉयज। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी तो देखो ना यार कि पाकिस्तान एक्चुअली प्लेड some of their better cricket yesterday and India played their shitter version yesterday। India had a really poor game। This was the off game जो वक्त के साथ आई जाती है, लॉ ऑफ एवरेजेस के साथ। कैच छूट रहे हैं, मेन बॉलर्स पिट गए हैं, सिर्फ थोड़े से रन्स के लिए नहीं, अच्छे खासे पिट गए हैं। एंड डिस्पाइट दैट दे विन क्वाइट कंफर्टेबली। दैट टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो। इट पेंट्स अ पिक्चर एंड द गल्फ इज देयर फॉर एवरीवन टू सी। दे एंड द गेम, annihilate पाकिस्तान इन द पावर प्ले, 69 for none, डन। आपका बेस्ट पावर प्ले था 55 for 1, 14 रन का फर्क। अच्छा, उसके बाद अबरार अहमद 1 for 42 and 4। अबरार को मुझे पता है, महून तुम यहाँ बैठी भी हो ना, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज सेइंग आई एम सिंगलिंग आउट 3 players who can take India down। फखर जमान जो नजर आ रहा था कि कर सकता था,
50-50 कॉल होगी डिसमिसल पे व्हाटएवर। शीनो शीनो अगेन पिट गया, गलत लेंस बोल कर रहा है अभिषेक शर्मा को, उसकी अपनी गलती है। जो पिटा है ना ये पावर प्ले में, इसकी पूरी अपनी गलती है। और फिर बातें भी सुनी है 10,000 सुननी पड़ेगी ना, अब वो भी करेंगे। आई एम एक्चुअली हैप्पी कि इंडियाज बैटर्स गेव ऑल दैट वर्बल अब्यूज राइट बैक टू पाकिस्तान, बिकॉज़ यही फायरी कॉन्टेस्ट होते हैं। तो शीनो था एक और जो मैंने सिंगल आउट किया था, ही फेल्ड मिजरेबली, और तुमने नंबर्स भी बता दिए। और वो लेफ्टीज वाला स्टैट भी तुम्हें याद होगा, ही फेयर्स फार वर्स versus left-handed batters in T20 Is and T20 cricket as opposed to right-handed batters. T20s में कम है गैप, T20 Is में कोई 12 रन की एवरेज का फर्क है, अंडर 20 वर्सेस 32 प्लस, इस तरह कुछ है। तो एक मैंने फखर बोला था, एक शाहीन शाह बोला था अफरीदी, और एक मैंने बोला था हारिस रऊफ did well. I was hesitant to put Abrar Ahmed in that category because I knew what India can do to him. अभी तक कुछ नहीं किया मतलब वैसे। अब्रार had been really good against India. जरूरत नहीं पड़ी थी मेरी जान, ये भी तो है ना, कोई प्रेशर ही नहीं। हाँ, सारे चीजेस जो भी आज तक अब्रार के अगेंस्ट किए हैं आराम से। They could afford to knock it around. यहाँ पे पहली बैटिंग कर रहे थे, सॉरी पहली वो चेस कर रहे थे पावर प्ले में अभिषेक लगा हुआ था, खा गए उसे। और अब्रार भी यार ठीक है, तू चलो पिट गया, खैर है यार, होता है, ऑफ डे आता है। बार बार you're pitching it outside of leg stump to अभिषेक शर्मा, do you not know he's just gonna swing for the hills? Just by the way, आप लोगों से तो होता नहीं है swing for the hills। जिस तरह अभिषेक आउट भी हुआ है ना, that was there to be hit for 6। बहुत गंदी बॉल पे आउट हुआ, और वो पहले भी चांस मिला। खैर आप ये कह सकते हो अब्रार ने एक तरह से निकाल दिया था उसे ब्रो। वो साहिबजादा फरहान ने कहा कि आई विल रीपे द फेवर, तूने 2 दफा ड्रॉप किया था मुझे, मैं भी तुझे 1 दफा ड्रॉप करता हूं। जाओ गोलियां शोलियां चलाओ भाई अपनी। देखो अजीब हरकतें कसम से। अभिषेक शर्मा के चांसेस निकले, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज्यादा गेंदे उसकी जो है ना नोमी पाइंस लैंड में वो जान के मारता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। उसकी क्लेवरनेस देखो, वो सीखो। उसके लिए आप पावर प्ले फील्ड सेट ही नहीं कर सकते। ये साथ कह रहे ना कि ये दो लोग वो कहीं और मार देगा। आप ट्राई कर सकते हो ब्रो, जब आप उसके रन्स रोकोगे ना उस साइड पे, कोई ना कोई तो निकलेगी यार। हर बॉल छक्के के लिए नहीं जाएगी मेरी। थिंग इज कि हम कह रहे थे कि शुभमन गिल हैज impeccable range and he plays low risk attacking cricket, right? अभिषेक शर्मा has impeccable range and he plays high risk attacking cricket. Range तो उसकी भी है। He's what a modern day batter looks like in T20 cricket. He can score runs anywhere. वो अभी अनऑर्थोडॉक्सियां भी कर सकता है। अभी तो अनऑर्थोडॉक्सियां उसने की नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, उसके बाद Assayam Ayub कितने थे बेचारे के? None for 35 and 3 होना ही था यार, कभी ना कभी तो पिटना था ना उसने। देखो मैं बार बार कह रहा था यू कैन नॉट कंटिन्यू टू रिलाई ऑन शाहीन शाह अफरीदी टू बेल यू आउट विद द बैट एंड सायम अयूब टू बेल यू आउट विद द बॉल। फिर आपने तो शाहीन पे चांस ही नहीं लिया। यू मे बी टुक मी टू सीरियसली ओवर देयर। आपने कहा इसको बैटिंग ही नहीं देंगे। ये बात इसने ठीक की है, इसको नहीं देनी नहीं है बैटिंग। शीनो और हारिस को लाएंगे ही नहीं हम। पता नहीं मो हारिस को फिर क्या रखा हुआ है आपने यार, डेथ में तो आ ही सकता था, रिटायर आउट कर देता यार सलमान अपने आप को। वाकई ये अमार जहीर नहीं बोला था वाकई। They need to start thinking along these lines, man. Honestly, Pakistan needs to catch on quick. पाकिस्तान बहुत पीछे, बहुत पीछे यार। पाकिस्तान ये बोलते कुछ हैं करते कुछ। अभी तो फिर कम गलतियां हैं। पीछे 3 मैच देख लो तो उसमें तो बेतहाशा discrepancies हैं in terms of what they say and what they do out on the field. This is still not as bad as 7 runs and 2 wickets and 4 post power play overs. Still not. अभी तो अक्षर ने बॉलिंग नहीं कराई, वो 1 ओवर में 8 रन खाया हुआ है, वो स्लो लेफ्ट आर्मर है, उसने भी पड़ जाना था। But still not good enough. Not good enough, man. Look, एक मैं यहाँ पे जरूर चीज बोलूंगा, हमने सारा डायसेक्ट किया गेम को, हमने नेगेटिव्स की बात की, हमने हल्के फुल्के जो पॉजिटिव्स थी उसको भी बात की है। इफ आई एम पाकिस्तान राइट नाउ, इफ आई एम माइक हसन एंड सलमान अली आगा, आई एम टेलिंग द बॉयज के ओके forget about what happened. ठंडे हो सबसे पहले, अगली 2 गेम्स जीतो, जीत जाओ। if you can play or replicate this sort of cricket versus Sri Lanka and Bangladesh, there's a good chance you win. There is a good chance. Yeah. इसी तरह की क्रिकेट, क्योंकि पॉजिटिव्स तो हैं। आप यही वाली आप कह लो कि आप 175 श्रीलंका बांग्लादेश को कर लो, you probably have the bowling to defend them versus those teams. But then again, you now know exactly what you need to do versus India. अभी तो उनके लैप्सेस आए हैं यार। फाइनल में अगर आपको मिलती है इंडिया, there's no guarantee Bumrah has a bad game, Kuldeep has a bad game, they drop 10,000 catches. गारंटी क्या नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है ऑफ डे था उनके लिए। मगर फिर आप ये उम्मीद कर सकते हो कि पहली बॉलिंग कराकर आप जल्दी विकेट लेकर उनको पकड़ लो, और बाय द टाइम फाइनल लो ड्यू आ चुकी है। हाँ, खैर वो तो ऑलरेडी आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू स्टार्ट टू बिकम अ चेसिंग टूर्नामेंट। आई फील लाइक चेसिंग टूर्नामेंट ऑलमोस्ट हो ही गया, वहां पे पहुंच गए। मगर यार देखो, ये जो स्पंजी बाउंस था ना कल, जिसकी वजह से राणा फहूम और शिवम दुबे चले हैं। हाँ दुबे सैंतालीस को एक ओवर ट्राई कर सकते थे, मगर मैं देखना चाहता हूँ कि स्पंजी बाउंस परसिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखिए कौन सी विकेट, क्या पता इस वाली विकेट स्पेसिफिकली में। एग्जैक्टली, वो ग्राउंड तो एक ही है मगर विकेट तो डिफरेंट है ना। मगर आउटफील्ड बड़ी थकी हुई उस्ताद यार। अबू ज़ेबी की आउटफील्ड बहुत बेहतर है। अबू ज़ेबी हर तरह से ही मुझे इस वक्त बेहतर लगता है। वैसे भी बेहतर लगता है, वो थोड़ा खुला स्टेडियम है। हालांकि मुझे वैसे डेक्स ज्यादा पसंद था। On this note, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगा। पाकिस्तान, सॉरी, ऑन दिस नोट से पहले
देखो you're still in this tournament, win the next 2 games and play the final, beat India over there, अपनी गलतियां सुधारो, और ये याद रखो कि you were better in this game, there are some positives. If you manage to play this sort of cricket versus Sri Lanka and Bangladesh, odds are, good chances are कि आप जीत सकते हो दोनों मैच, और आप जीत सकते हो, वो आपके लेवल पे ऑपरेट कर रही है टीमें, वो आपको पावर प्ले में 69 रन नहीं मारेंगी. Let's just put it that way. अब आने वाला है तंजीद, पैथुम निसांका, पैथ्यूम एंड कुशल ने मारने हैं 69, पुलम लाइक पैथुम, जो कि हम बाय द वे लाइव होंगे कल. हाँ. Yes, वैसे तो मैं साथ को पंप कर रहा हूँ कि वेंसडे को मेरे साथ यार वो देख लेते हैं, क्योंकि अभी वेंसडे को टाइम नहीं है मेरी जान. 5 बजे आ जाएंगे. ओह माय गॉड ब्रो, मुफ्त के व्यूज हैं बिजनेस एंड. अब पाकिस्तान कितना फ्रीक्वेंटली होता है बिजनेस एंड ऑफ टूर्नामेंट्स में, ये बताओ मुझे जरा. बात ठीक है. अगर तो मेरा ये जो इन्फेक्शन मुझे लग रहा है ना कि हो रहा है मेरे गले में, वो ठीक हो जाए तो बस जल्दी ठीक करो ब्रो तुम. ब्रो एनीवे, होपफुली यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट. आई नो थोड़ा हीटेड हो गया था आज, बट बेराम थोड़ा सा यार वैसे पता है ये पॉडकास्ट शुरू से पहले मैंने कहा था नहीं मैं सुकून में ही हूं. आई वाज लाइक आई वोंट बी काइंड बट आई एम नॉट प्रॉब्ली गोइंग टू लूज इट. एंड आई थिंक देखो ये जो पैशन है मेरा, अल्टीमेटली इट्स लेस टू डू विद पाकिस्तान जीते या हारे, इट्स मोर टू डू with shit cricket. अल्टीमेटली सीरियसली, बाद में मजाक भी नहीं कर रहा. इट अल्टीमेटली हैज अ लॉट टू डू विद शिट क्रिकेट. आप लोगों को अभी पता नहीं है, हम ओमान की गेम देख रहे होते तो तप रहे होते. हाँ यार, तो ये क्या कर दिया यार. When I see कलीमुद्दीन सिद्दीकी भाई, कलीमुद्दीन सिद्दीकी भाई, शकील भाई को भूल गए. शकील भाई थोड़े पीछे रह गए कलीमुद्दीन शाह फैसल से ही कुछ सीख लेता शीनो. वो गिल को तो उसने ही वाज़न्ट लेटिंग दोस गाइस स्कोर अ रन. अच्छा, अब मुझे लगता है टाइम आ गया. I think अब टाइम आ गया है. इस नोट पे anyway, we'll be back in a live tomorrow. नहीं, day after tomorrow. Tomorrow. आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक करना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेराम, मुझे माहिर, नोमी, हर सारे नोमी, दाऊद भाई भी बैठे हुए हैं, सबको फॉलो करते हैं हर जगह. और हमारी बूथियां पसंद आई हो तो Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, Pandora, Pocket Cast, Podbean, Castbox, Podcast Addict और जहां हैं हम वहां पे जाके हमें सुन लीजिएगा. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. Boy, Gaza!